السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 28 تاریخ 1442 ہجری 11 مئی سن 2021 بروز منگل۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے، جو کہ جناب نعمان حیدر قادری صاحب نے بڑے ہی پرکیف اور حسین انداز سے ادا کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو زکوٰۃ اور صدقہ دینے کے لیے صحیح حقدار کا تعین کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندوں کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کے کام میں مدد کرتا رہے۔ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے رحمتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، سبحان اللہ۔ تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے سبحان نکال دے۔ انسانیت سے پیار، محبت اور ضرورت مندوں کی مدد کو ہر مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاص اور عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو یکساں صلاحیتوں اور اوصاف سے نہیں نوازا، بلکہ ان کے درمیان فرق رکھا ہے، اور یہی فرق اس کائنات کا حسن و جمال ہے۔ وہ رب چاہتا تو ہر ایک کو خوبصورت، مالدار اور صحت یاب پیدا کرتا، لیکن یہ یک رنگی تو اس کے شان کے خلاف ہے، اور جس امتحان کی خاطر انسان کو پیدا کیا ہے، شاید اس امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ اس رب نے جس کو بہت کچھ دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور جسے محروم رکھا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ وہ رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد ان کے اپنے بھائی کریں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بہت نوازا ہے، تاکہ انسانوں کے درمیان باہمی محبت کے رشتے بھی استوار ہو سکیں، اور دینے والوں کو اللہ کی رضا اور گناہوں کی بخشش بھی حاصل ہو سکے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہو۔ آج کے دور میں ہر انسان بے حد مصروف ہے۔ جی بالکل، فکر معاش میں ارد گرد سے لا تعلق سا نظر آتا ہے، دوسروں کے مسائل سے ناواقف ہو چکا ہے، اور اس معاشرے میں رہنے والوں کا، لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ عبادت کو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک ہی محدود کر چکے ہیں، جبکہ ہمارا دین ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا سکھاتا ہے اور ایثار کرنا سکھاتا ہے۔ آج کل کے دور میں کوئی کسی کے کام آ بھی جائے تو اس کو فوراً فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی کسی کے کام آنا بھی چاہے تو نہیں آتا، بلکہ لوگ اس کو بے وقوف کہنے لگتے ہیں کہ یار اپنے کام سے کام رکھو، کہاں دوسروں کے معاملے میں پڑ رہا ہو، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ تو یہ خود غرضی اتنی عام ہو گئی ہے کہ جس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ حضرت ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان فرمائی ہے، جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے، اسے تسلی دے، اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مصیبت زدہ کو ملتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہماری ٹرانسمیشن بس آخری مراحل میں ہے۔ رمضان کے اتنے دن گزر گئے اور یہ دن یقین کریں پتہ ہی نہیں چلے۔ بے شک۔ اور کیونکہ ذکر خدا، ذکر رسول، اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، آل رسول کی باتیں، اتنی دین کی اتنی باتیں ہو گئیں کہ اتنا محو ہو گئے تھے کہ دن پتہ نہیں چلے، اور اب یہ افسوس ہوتا ہے کہ اے اللہ
चंद दिन रह गए हैं, अब ये महीना हमें अगले साल नसीब होता है या नहीं होता। मगर फिर भी ये हमारी कितनी खुशबख्ती है कि लाखों अरबों की तादाद में इस दुनिया में लोग हैं, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये तौफीक दी अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम इस माह मुबारक में मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अल्लाह से दुआ ये कि जितनी भी कोशिश हमने की अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। आज एंटरटेनमेंट की भी और हमारे जितने मेहमान आए हैं इनकी भी, रीमा साहिबा की भी, मुझ हकीर से इंसान की भी जितनी भी मेहनत है। और मैं आप तारुफ़ कराता चलूँ अपने मेहमानों का, गो कि वो तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन चूँकि इखलाक़ी तकाज़ा है जब वो हमारे मेहमान हैं तो हम आपको रोज़ बताएं कि हमारी ट्रांसमिशन में हमारे मेहमान कौन हैं। जनाब मोहतरम बेहतरीन अंदाज से पढ़ते हैं हमारे भाई शेरी रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। और दूसरे हमारे मेहमान हैं हसन बिन खुर्शीद साहब, यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बेपनाह अच्छी आवाज़ है, बेपनाह अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं, दिलों में एक घर कर लिया है सबके। और तीसरे हमारे मेहमान जो मंडी बहाउद्दीन से तशरीफ़ लाए हैं और नातिया मुकाबले में फ़ातह भी रह चुके हैं, जनाब नासिर अल्ताफ़ साहब, आपको भी शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। और आप तक ये ट्रांसमिशन पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स एंड डालडा। देखते रहिए बाराने रहमत। माशाअल्लाह। एक खूबसूरत बात, एक दूसरे के रिस्क पर नज़र ना रखो, एक दूसरे के रिस्क पर नज़र ना रखो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तकसीम करने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। ये माह मुबारक अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और ये हमारी बहुत बड़ी खुशबख्ती है कि रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सादत दी इस माह मुबारक में अपनी इस्लाह करने की, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की। कितने लोग आए करोना वायरस की वजह से, बग़ैर किसी बीमारी के, बग़ैर किसी मनसूबा बंदी के, सोच भी नहीं सकते थे और इस दुनिया से रुखसत हो गए। कितने खुशबख्त हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने अभी भी इस दुनिया में मौका दिया है कि वो अपनी इस्लाह कर लें, क्योंकि ये दुनिया एक धोखा है और हम सब इस धोखे में मुब्तला हैं। तो रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसा करम कर दे हमारी ज़ात पर कि हम इस धोखे में मुब्तला ना रहें, हम हकीकत को समझ सकें, अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें। एक दूसरे की किरदार कुशी करने की बजाय, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय, एक दूसरे के गिरेबान चाक करने की बजाय, रिश्तों को तोड़ने के बजाय, एक दूसरे की मुस्कुराहटें छीनने की बजाय, इन दुनियावी चीज़ों के लिए जिसको पैसा कहते हैं, जिसको जायदाद कहते हैं, जिसको सोना या जवाहरात कहते हैं, इन मुआशी चीज़ों की वजह से हम कितनी कीमती चीज़ों को खो देते हैं। और अल्लाह ताला ने जिसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है वो इन दुनियावी चीज़ों की वजह से कितना छोटा हो जाता है, कितनी छोटी हरकतें करता है कि इंसान जैसी चीज़ को, इंसान जैसी अज़मत वाली पर्सनैलिटी को, जिसको रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी सारी मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, उसके साथ कीना रखता है। एक जानवर के दर्द को जानवर महसूस कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इसीलिए वो जानवर है। लेकिन एक इंसान के दर्द को दूसरा इंसान महसूस कर सकता है। दर्द किसी को हो, आंसू इंसान दूसरे इंसान की आंख में आता है। तड़पता किसी को देखें तो दिल को हाथ पड़ता है, किसी के बच्चे को तकलीफ़ में देखें तो अपने बच्चे की तरह दर्द महसूस होता है, किसी भाई को तकलीफ़ में देखें तो लगता है मेरा भाई तकलीफ़ में है। ये दर्द, ये एहसासात रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को दिए हैं, मगर हम इंसान होकर भी क्यों जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। एक दूसरे की तकलीफ़ का एहसास नहीं करते, एक दूसरे को बुरा कहने में पहल करते हैं। तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ, या रब्बुल इज़्ज़त मुझ पर तेरा करम है कि मुझ जैसी गुनाहगार को तूने ये तौफीक दी कि मैं अच्छे लोगों में बैठ सकूं, और इस दुनिया में तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं, मैं अपनी बात से
अपने किरदार से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना दूं। और यही मैं तमाम देखने वालों से कहती हूँ, किसी पर उंगली मत उठाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी नीयत देखता है, आपका दिखावा नहीं। और इंसान हमारा दिखावा देखता है, हमारी नीयत नहीं। तो किसी की नीयत पर डाउट मत किया करें। किसको उसने क्या मकाम दिया है हम में से कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में हमारी गलतियों को माफ़ करे। और इस पूरे माह मुबारक में मैं ख़ास तौर पे कहूँगी कि मुझसे कहीं कोई गलती कोताही हो गई हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो मैं तहे दिल से अपने रब के हजूर और उन तमाम लोगों से माफ़ी की ख्वास्तार हूँ। मैं आदम ज़ात हूँ मौला, तू मुझको जानता है। मैं आदम ज़ात हूँ मौला, तू मुझको जानता है। ज़्यादा आजमाइश पर मैं जन्नत हार जाऊँगा, ज़्यादा आजमाइश पर मैं जन्नत हार जाऊँगा। बरान रहमत में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। ये नशरियात आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंक ऑलपर्स एंड डालडा। और हमारे साथ अब मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि ये हेल्थ का सेगमेंट है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका हम तारुफ़ कराते चलें। आगा अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आगा अब्बास साहब। उफैरा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बहुत अच्छी माहिर ग़िज़ाइयत हैं, हमें अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताती हैं, रेमेडीज़ बताती हैं। और तीसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी आप इनको न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, डॉक्टर उम्मे राहील साहिबा बेहतरीन अंदाज से रेमेडीज़ बताती हैं। और जहाँ पर सेहत की बात है वहाँ पर इंसान की अखलाकी सेहत कैसी अच्छी होनी चाहिए, तो मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इरम ज़िया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। चारों मेहमानों को बहुत बहुत खुश आमदीद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 28वां रोज़ा हमने इख्तियार किया है और अब हम ईद की खुशियाँ मनाने के लिए बस कुछ ही दूर हैं। अल्लाह का मेहमान माह मुबारक बस चंद दिन का मेहमान है। अशराए जहन्नुम की आग से निजात के लिए आखिरी लम्हात हैं। आज 29वीं शब है जिसमें हम अपने रब को मना सकते हैं, जहन्नुम की आग से निजात हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से हम उलमा कराम से भी गुफ्तगू करेंगे, मगर उससे पहले हमारे जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पे मैं इरम ज़िया साहिबा से पूछना चाहूँगी। इरम साहिबा, रमज़ानुल मुबारक जा रहा है, आखिरी अय्याम है, ताकरात भी आने वाली है और आखिरी ताकरात, क्या कहेंगी? कैसे अपनी इस्लाह करें और कैसे इन लम्हों को अपने दामन में समेट लें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीमा, हम जब ये प्रोग्राम शुरू हुए थे तो हमने एक बात की थी कि रमज़ान अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा है और इंसान को एक मरतबा फिर से ये मौका मिला कि वो अपनी इस्लाह कर ले, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, अल्लाह के बंदों को अपना ले। मैं कहती हूँ सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश उन्हीं लोगों से होते हैं कि जो उनके बंदों से प्यार करते हैं। अल्लाह कहते हैं मेरी अयाल है, ये दुनिया मेरी अयाल है, अब अगर तुम मेरी अयाल का ख्याल रखोगे तो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करूँगा। तो अब क्योंकि आखिरी लम्हात हैं तो मैं समझती हूँ इसमें भी अगर कोई कोताहियाँ हो गई हैं, कहीं कुछ कमी, कुछ कजी बाकी रह गई है, तो आज की भी रात है और अल्लाह का शुक्र है। इस रात में ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े में ये रमज़ान तो उसने हमें अता किया, इसके बाद भी आने वाले अल्लाह हमें बेशुमार रमज़ान अता करे ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें, हम अल्लाह की तरफ रुजू कर सकें और अपने रब से मांग सकें और अल्लाह के बंदों के लिए अपना दिल और दामन दोनों खोल सकें। अल्लाह के बंदों की आपने बात की तो मैं अल्लाह के उस बंदे को इंट्रोड्यूस करवा दूँ जो हम सब के बहुत हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। आज का तड़का के हम सब के बहुत ही प्यारे हमारे अपने गुलजार साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। तो आखिरी दिन है तो हमने सोचा कि कुछ रमज़ान से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई हैं, लेकिन आज मैं पुलाव जो है वो ज़ाफ़रानी पुलाव जो है वो बनाना सिखा रहा हूँ। और चिकन में बना सकते हैं, मटन में, मैं चिकन में बना रहा हूँ और कैसे बनाएंगे ये भी मैं बताऊँगा। लेकिन शुरू करना जो है वो हमारा किस तरह से शुरू करना है तो वो आपको पता ही है कि हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड सोप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाथ को वॉश करना ज़रूरी है। लाइफ बॉय जो है
सोप से हमने अपने हाथ को वॉश करना है और थोड़ा सा सोप आप अपने हाथ पर इस तरह से ले लें और इसे अच्छी तरह से इसको साफ कर लें हाथ को। बच्चों को, बड़ों को, सबको आपने सिखाना है कि किस तरह से अपने आप को कोविड के इस दौर में अपने आप को महफूज रख सकते हैं। थोड़ी सी सफाई से, थोड़े से काम से इंसान बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकता है। तो इसमें हमने आखिर में जो है रोज़ पेटल से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। उसको लाजमी डस्टबिन में ज़रूर डालना है। मास्क वगैरह हम पहनते हैं उसको भी डस्टबिन में ज़रूर डालें। आदत बना लें अपनी, इसलिए कि अभी हमने कोरोना के साथ लाइफ गुजारनी है। अभी मेरे पास यहाँ जो है डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा, और इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पुलाव के लिए। और मैंने प्याज इसमें डाल दी, तकरीबन 2 बड़ी प्याज मैंने ले ली है और इसे मैं ऐड कर दिया ब्राउन करने के लिए। और इसके साथ मैं शामिल कर दूंगा कुछ गरम मसाले साबुत, जिसमें तेज़पात भी है, बड़ी इलायची और ज़ीरा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपके घर पर साबुत गरम मसाले हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, दालचीनी वगैरह सारी चीज़ें। और इसके बाद बाकी हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। थोड़ी सी प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें से निकाल कर रख लें। जो हम लास्ट में पुलाव में शामिल करेंगे ये बड़े राज की चीज़ होती है और बड़े काम आती है ये पुलाव को टेस्टी बनाने के अंदर। तो मैंने ये ब्राउन प्याज थोड़ी सी निकाल ली है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर, चलें जी, चिकन ऐड हो गई और अदरक लहसुन ऐड करके और इसे हमने भून लेना है अच्छी तरह से। बाकी चीज़ें मैं करता रहूँगा। ओवर टू रीमा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। गुलजार साहब, कमाल खुशबू आ रही है, लेकिन मैं नाक को कंट्रोल किया वो अफ्तार के बाद थे। बिल्कुल। हम चलते हैं अब्बास साहब, ये बताइए कि एक बीमारी तो है बुखार, जो एक आम बीमारी है, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह बुखार में भी कोई नेमत होती है अल्लाह की, अगर किसी को बुखार देता है। लेकिन कभी कभी बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दवाइयों से भी नहीं रुक रहा होता, और एक आम बुखार भी होता है। एक आम बुखार में तो आप ये बताइए क्या ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए, लेकिन वो बुखार भी कि जो दवाइयों से भी अक्सर कंट्रोल नहीं हो रहा होता, उसके लिए क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आम बुखार के लिए तो बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं छोटे छोटे जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि टाइम की बड़ी किल्लत पेश है यहाँ पर, दरकार है मुझे टाइम थोड़ा सा दरकार होगा, 1 से 1.5 मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा। देखिए, सेब से बुखार उतर जाता है। मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सेब खिलाइए और सेब को काटिए, तो उसकी फांके बनाइए, सूंघ सूंघ के खाइए, बुखार उतर जाता है। शहद खिलाइए 2 से 3 मरतबा, थोड़ा थोड़ा बुखार उतर जाता है। क्या बात है, माशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। यकीनन अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है। बेशक बुखार की बात हो रही है तो हम अपनी न्यूट्रिशनिस्ट उफेरा से पूछेंगे कि बुखार जब हो जाए आदमी को तो उसको किस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ठंडा मत पिएं, कुछ कहते हैं कि गर्म मत पिएं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, यहाँ पे रीमा देखिए, बुखार वैसे तो खैर सबको ही पता है कि ये वो बीमारी है जो कि एक नेमत है अल्लाह की तरफ से। और बुखार का मतलब ये है कि जब आप बुखार की कैफियत में हैं तो आपके ऊपर किसी वायरस ने, किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया, किसी बीमारी ने अटैक किया, और उसके बाद आपके अंदर का जो एक फौजी सिस्टम है, जो गुड बैक्टीरिया सिस्टम है, उसके आपके जिस्म के अंदर एक वॉर स्टार्ट हो चुकी है। और जब वो जंग चल रही है कि आपको बीमारी से सेहत की तरफ लेके जाया जा चुके हैं, तो वो उस कैफियत में आपका टेम्परेचर हाई होता है और बुखार की कैफियत में जाते हैं। तो ये एक नेमत है, इस पे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो एक एक्स्ट्रा फंक्शन कर रहा होता है, तो उस वक्त सबसे पहले हमारा गैस्ट्रो इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं अगर हमने हैवी डाइट्स लेनी शुरू कर दी। बुखार में अवॉइड करना चाहिए फाइब्रस डाइट्स, ऐसी डाइट्स जो कि आपके पेट को बहुत साफ़ करती हैं, जिसमें कि पराठे आ जा, लाइक मैं आटे से रिलेटेड बात कर लूँ, आटे आ जा रहे हैं, या फाइबर जैसे आम जैसी रेशेदार ग़िज़ाएँ आ जा रही हैं, वो अगर लेते हैं तो वो हमारे स्टमक पे इफ़ेक्ट करती हैं। लाइट डाइट लेनी चाहिए, फ्लूइड डाइट ले लें, सूप्स बेस्ट हैं, और हल्की फुल्की ग़िज़ा लेनी चाहिए, कुछ भी हैवी या रोगनी ग़िज़ा नहीं लेनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी रोशनी में आप सवाल जी कीजिए। जी, बुखार की बात चली है तो डॉक्टर मिराइल साहब बताइए, बुखार जब चढ़ता है तो फौरी तौर पर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम इंतज़ार करेंगे तो ज़ाहिर है बढ़ता रहेगा। फौरी तौर पर इमरजेंसी में क्या करना चाहिए?
देखिए सबसे पहले जैसे उफैरा ने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बुखार इट्सेल्फ कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये इंडिकेशन है, एक अलार्म है। आपको फ़ौरन जो है अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से बुखार हो रहा है। अच्छा, एक गर्मी का बुखार होता है, जब गर्मी बहुत बढ़ती है तो आपके जिस्म में हिद्दत बढ़ जाती है और बुखार शुरू हो जाता है। उस पर जो है ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने को जो कहा जाता है, जैसे कि आजकल मौसम बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह क्या होता है कि अगर बुखार बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ लेगा तो वो ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ठंडे पानी की पट्टियाँ रखना बहुत ज़रूरी है, ठंडे पानी से शावर लेना बहुत ज़रूरी है, ठंडे पानी के अंदर हाथ पैरों को डबोना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चीज़ें तो बेतहाशा हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी गुलजार भाई ने अपने पुलाव के अंदर गरम मसाला डाला टेस्ट के लिए, लेकिन ये गरम मसाला जो है सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, ये एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें से डिफरेंट चीज़ों को लेके अगर आप सिर्फ कहवा बना के पीना शुरू कर देते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट, लाइक आप तेज़ पत्ते का कहवा बना के पी लीजिए, आप काले ज़ीरे का कहवा बना के पी लीजिए, नहीं तो आपने मेथी दाने का कहवा बना के पी लेना है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आपने उसका जो भी सिम्टम्स जो हो रही है उसका फाइंड करना है, उसका रूट जो है तलाश करना है कि बुखार हो क्यों रहा है। टाइफाइड भी हो सकता है, कोई और इशू भी हो सकता है, तो वो चेक करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। सही, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक मुख्तसर वक्फे का, लेकिन हम क्योंकि गुफ्तगू का सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी रहेगा। बारान रहमत आप देख रहे हैं, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सीडेंट कोकोला, पावर्ड बाय ऑलपर्स टैग एंड डाल्डा। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए बारान रहमत। बारान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। बड़ी खूबसूरत एक बात कि एक दूसरे के रिस्क पर नज़र ना रखो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई भी तकसीम नहीं कर सकता। मगर वो जो खुशबू वहाँ बैठे मुझे आ रही थी तो मैंने आप सोचा करीब कि से आ रहे इस रिस्क पर भी रब्बुल इज़्ज़त ने शायद किसी दाने पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। वाकई दाने दाने पर लिखा है खाने वाले तो का अल्लाह नाम। ने तकसीम करने का सब वसीला आपको बनाया। बस अल्लाह ताला की रहमत है, मेहरबानी है उसकी। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये कौरमे का कलर लग रही है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया। ये इसमें दही मैंने शामिल कर दिया था, साबुत गरम मसाले और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ जो है इसमें अदरक। अच्छा, साबुत गरम मसाला में बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या क्या चीज़ें। दालचीनी है, बादियान का फूल है, तेज़पात है, ज़ीरा है, और इसके साथ जो है इसके अंदर बड़ी इलायची है, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो इसको आप, अच्छा लौंग भी है। अभी इम्यून सिस्टम के बारे में बात हो रही थी, तो लौंग बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आप लाजमी 2 लौंग रोज़ाना खाएं, इसको सुपर फूड कहते हैं। इंशाल्लाह तमाम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। सीरियस बता रहा हूँ, 2 लौंग रोज़ाना लौंग को चाय में डालकर पिए या मतलब वैसे खा लें? चाय में डालकर पी लें और आखिर में लौंग को खा लें, ज़ाया ना करें। हाँ, अल्लाह थोड़े ये बड़ा 3-4 मुश्किल दिन आपको थोड़ा तुर्श महसूस होगा, उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी। इंशाल्लाह बैक्टीरिया शैक्टीरिया से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास पुलाव जो है वो बन रहा है, मसाला इसका तैयार हो रहा है। यहाँ मैं कचौरी बनाने जा रहा हूँ। कचौरी के लिए मैंने जो है दाल को पेड़े में बना कर रख लिया ताकि टाइम बच जाए हमारा, इसलिए कि टाइम आपको पता ही कम होता है। तो इसमें हमने जो बॉइल्ड चने की दाल होती है, सिर्फ ज़ीरा, लाल मिर्च और चने की दाल और नमक, इसको हमने ग्राइंडर मशीन में अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई ऐसा बना लिया है। और मैदे को, आधा किलो मैदे में 1 चुटकी नमक और 2 टेबल स्पून इसमें आपने घी या अपना तेल जो है डालडा का घी इस्तेमाल कर लें, या डालडा का जो तेल है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, कलोंजियन कनोला का मिक्सचर, वो इस्तेमाल कर लें। और इसको बेलने के लिए भी हमेशा मैं कहता हूँ कि ऑयल इस्तेमाल ज़रूर करें, डालडा, और इसे आप सिर्फ उंगलियों की मदद से ऐसे, ठीक है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बेलन शेलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये बन जाएगा और इसे आप फ्राई करने के लिए डाल दें। सिर्फ काम सारे प्यार मोहब्बत से करने हैं। ठीक है, हल्का सा आपने इसमें ऑयल लगाया और इसे इस तरह से फैला दिया, बस ये फैल गया। और थोड़ी देर पहले बना कर रखें ताकि आसानी से फैल सके। ठीक है, और इसे आप फ्राई कर सकते हैं। तो ये कचौरियाँ बन रही हैं एक तरफ, और एक तरफ पुलाव तैयार हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, आप मैं इसको तैयार कीजिए, हम इतनी देर में अपने मेहमानों से कुछ सवाल करते हैं। जी फरहान साहब। जी आगाबाज साहब, बुखार के हवाले से एक बात हमने ये भी सुनी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बुखार का
فوری علاج اس کا بالکل فوراً نہیں کرنا، تو اس کی کیا وجہ ہے فوری نہیں کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیارا سوال آپ نے کیا، اور میں آپ کی خدمت میں اور اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاک نبی پہ کروڑوں درود و سلام ہوں. ہر تکلیف سے ہمیں بچانے کا بات بتائی، ہر تکلیف سے ہمیں بچانے کے لیے حدیث فرمائی میرے مولا نے. میرے مولا نے فرمایا جو ایک رات کا بخار برداشت کرے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو 2 راتوں کا بخار برداشت کرے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو 3 رات تک بخار برداشت کرے 70 سال کی عبادت کا ثواب اللہ اسے عطا کرتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں میرے مولا نے فرمایا کہ بخار کو برداشت کیا جائے. دیکھیے بخار 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں بخار چڑھتا ہے، اس کو آپ غذا سے ٹریٹ کر لیں. روغن بنفشہ کاسنی کے ساتھ ملا کے ماتھے پہ لگائیے، بخار کی شدت نہیں بڑھے گی. ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ لیجیے، بخار کی شدت نہیں بڑھے گی. لیکن سوچنے والی بات ایک اہم یہ ہے کہ بخار کو برداشت کرنے کا حکم کیوں دیا. دیکھیے آپ پانی پیتے ہیں، پانی کو پینے سے پہلے آپ بوائل کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، وہ ہلاک ہو جائے. گرم پانی، پوری دنیا مانتی ہے کہ گرم پانی سے بوائل کرنے سے اس میں جو وائرس ہے، جو جراثیم ہے، جو بیکٹیریا ہے، مر جائے گا. آپ کے بلڈ میں، آپ کے خون میں بھی جو وائرس چلا گیا، گول گپے کھا کے، سڑے ہوئے فروٹ کھا کے، سڑی ہوئی سبزیاں کھا کے جو وائرس چلا گیا، اب اللہ آپ کو بچانا چاہتا ہے، آپ کے بلڈ کو تھوڑا سا بوائل کر رہا ہے تاکہ جو اس میں وائرس ہے، جو بیکٹیریا ہے، جو جراثیم ہے، وہ ختم ہو جائے اور آپ صحت مند ہو جائیں. 24 سے 48 گھنٹے میں آرام سے بخار چلا جاتا ہے ماشاءاللہ سے. یہ ہے اس کی تفصیلات. تھوڑا سا غور و فکر، قرآن نے فرمایا کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے کہ جس کی روشنی میں نیکی اور بدی ہمیں نظر آتی ہے. تو نیکی کی بات ہو تو یہ بتائیں کون سا آسان طریقہ ہے جس میں ہم آسانی سے لوگوں میں آسانیاں بانٹ سکیں، نیکیاں بانٹ سکیں؟ ریما، میں یہ کہوں گی کہ جس سے کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے. اور جو نیکیاں بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی مثال کچھ ایسی ہوتی ہے کہ عجیب لوگ تھے، تتلیاں بناتے تھے، سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے. واہ 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 واہ. تو بات یہ ہے کہ نیکی تو ایسی ہے کہ کرو تو پتہ بھی نہ چلے اور سامنے والے کی زندگی بھی بن جائے. کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے لگتے ہیں، بہت سمجھتے ہیں کہ بس ہم سے زیادہ اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر غصہ، تکبر اور غرور آپ کے اندر موجود ہے تو آپ نیک نہیں ہو سکتے. بے شک. پھر آپ اپنے آپ کو نیک تصور نہ کریں. ارم جی بتائیے نا کہ یہ تو ہر دوسرے تیسرے شخص کے اندر موجود ہے، تو پھر نیکیاں کیسے تقسیم کریں؟ یہی تو مسئلہ ہو گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکیاں ہم کرتے ہیں. ہم یہاں یہ بات اگر باور کر لیں، ہم کرتے نہیں، وہ رب کراتا ہے. بے شک. ہم کو تو وہ ذریعہ و وسیلہ بناتا ہے. جس کے ساتھ کر رہے ہو تو دیتے ہوئے یہ نہ سوچو کہ میں اس کو دے رہا ہوں، دیتے ہوئے یہ سوچو کہ میں کس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. واہ واہ. اچھا، اسی بات کو آگے جاری رکھیے گا. یہ بتائیں کہ کچھ لوگ جب چیریٹی کا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آلریڈی بہت سارے کام کر دیے، بہت سارے لوگوں کی مدد کر دی. کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، ہم نے ان میں تقسیم کر دیا، جبکہ اللہ کا ان پر خاص کرم ہوتا ہے. وہ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگوں کی اور مزید مدد کر سکتے ہیں، مگر وہ اپنا دامن جو ہے وہ اس ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا بچا لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا تلقین کریں گے یا کیا نصیحت کریں گے یا کیسے وہ اپنی اصلاح کریں کہ نیکی کی کیا کوئی حد ہے؟ نیکی کی حد تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور دیکھو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، ہر صاحب نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتا ہے. لوگ زکوٰۃ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم سخی بن گئے. زکوٰۃ دیکھ کے آپ سخی نہیں بنتے، آپ ایک عمل کو پورا کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پہ فرض کیا گیا. آپ سخی کا درجہ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو ادر دین زکوٰۃ کچھ دینا ہے. اور صحیح ہے، قرآن میں ڈسکرپشن آ گیا ہے کہ بھئی سب سے پہلے آپ اپنے عزیزوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں،
करीबी पड़ोसियों को दें। लेकिन क्या ही बात है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नवाजा है, और अल्लाह ताला तो साफ बयान करते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो मेरा है, अब उसमें से दो जो मैंने तुम्हें दिया। तो भाई किसी को नहीं पता कि किसके ज़मरे में किस वक्त कौन से पल आ रहे हैं। तो अगर आपके ज़मरे में कुछ एक्स्ट्रा पल आ रहे हैं कि आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी के कुछ लम्हों को खूबसूरत बना सकते हैं, तो अपने हाथ को मत खींचें, आप उनको वसी कर दें, आप उन दामनों को वसी कर दें, अल्लाह आपको मज़ीद देगा, क्योंकि आप अल्लाह के बंदों को देंगे। बेशक जब आप ऐसा कोई भी काम करते हो तो दर हकीकत आप अल्लाह ताला से कारोबार करते हैं कि अल्लाह कहता है तू मेरे बंदों को दे, उसके बदले मैं तुझे बहुत नवाजूंगा। अच्छा, जब रब्बुल इज़्ज़त की बात है तो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहानात भी होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बुखार चढ़ता है तो फिर उतर जाता है, फिर बुखार चढ़ता है, फिर उतर जाता है, और वो बहुत परेशान हो जाते हैं, नाला हो जाते हैं, ना शुक्रापन शुरू कर देते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि बुखार चढ़ने और उतरने की वजूहत क्या है? देखिए, बुखार जो है कई किस्मों के होते हैं, कोई ऐसा ही नहीं कि सिर्फ गर्मी में बुखार हो गया, ठंड की वजह से बुखार हो गया। उसके जैसे मैंने कहा कि बुखार होना जो है वो ये कैफियत है कि जब बुखार हो रहा है इट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है। जैसे अब हम मिसाल लेते हैं, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, अब अभी गर्मी के बुखार पे हम अगर डिस्कस अच्छा, गर्मी का बुखार है तो बहुत सिंपल है कि आपने कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अगर गर्मी से हो रहा है। देखिए, अगर बुखार, जैसे अभी रीमा ने कहा कि बुखार चढ़ रहा है और उतर रहा है, इट मीन्स बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है आपको लाजमी ट्रीट करना है। बट जैसे अभी बाज़ भाई ने भी कहा कि बुखार हो रहा है 2 दिन 3 दिन, तो नॉर्मली जो है 3 डेज़ आपने बर्दाश्त करना है। अगर उसके बाद भी शिद्दत बरकरार रहती है तो लाजमी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठंडे पानी की पट्टियाँ लाजमी रखनी है, ठंडा, अब गर्मियों में खासकर तरबूज बहुत आया हुआ है। अच्छा, मुनक्के के बारे में भी कहा जाता है, खूब कला और मुनक्का अगर उसको उसके अंदर डाल के तो उसकी बुखार की शिद्दत को तोड़ देता है। ये हमारी वालदा अक्सर बताती हैं। वो एक्चुअली अगर गले आए हुए हैं, टॉन्सिल्स हैं, या सीना जकड़ा हुआ है, बलगम है, तो उस वक्त मुनक्का जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। गर्मी का बुखार है तो उस वक्त आपको तरबूज का शरबत या खाली तरबूज खाना शुरू करें तो वो बुखार की शिद्दत को कम करेगा। और साथ साथ जो है, अगर सिर्फ गर्मी बुखार के साथ सर में दर्द अगर बहुत ज़्यादा है तो लौकी या कद्दू जो है उसका आपने मसाज जो है सर पे करना है, तो उससे भी बुखार की शिद्दत कम होना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया उफेरा। इन्हीं बातों की रोशनी में जब किसी को भी बुखार होता है तो उसकी हड्डी में या पट्ठों में बहुत दर्द होता है, उसकी क्या वजह? अच्छा रीमा, बुखार की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, क्योंकि बैक्टीरियाज डिफरेंट किस्म के होते हैं, जो कि जैसे मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया। इसी तरीके से ये जो आपने सिम्टम बताया है, इस बुखार का नाम होता है क्यू फीवर, सही है। और ये इसका रीज़न ये होता है क्यू फीवर, PQRS वाला क्यू फीवर। और इसका रीज़न जो होता है वो बेसिकली बैक्टीरियल अटैक होता है, और ये बैक्टीरिया जानवरों से आता है, सही है। ख़ास तौर पे उन दिनों में होता है जैसे बकरीद हो गया, या किसी के पास पैट्स हैं, उस पर कोई पैरासाइट्स पैदा हो रहे हैं, या उस पर कोई इन्फेक्शन हो गया, आपको पता भी नहीं है, वो जानवरों से आया हुआ जो फंगल इन्फेक्शन या अटैक, बैक्टीरिया अटैक होता है, वो आपके जिस्म में जाके जब अटैक कर रहा होता है तो उससे आपको क्यू फीवर होता है, और उससे आपके जिस्म के जोड़ों में, पट्टों में दर्द होता है, मसल्स क्रैम्प्स होते हैं। और इसका इलाज यही है कि पहले तो जाके फ़ौरन चेक करवाना चाहिए, कभी भी कुछ इस तरह का। इसकी वैक्सीन भी होती है, आपके पास जो भी पेट है उसकी भी वैक्सीन होती है। और दूसरा ये कि अगर आप किसी, जैसे बकरीद में ये बहुत कॉमन हुआ होता है क्योंकि लोग मंडी जा रहे होते हैं, तो उसमें भी होता है कि वहाँ से आके आप फ़ौरन एक बात ले लें, अपने आप को साफ़ कर लें, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपके घर में पेट्स मौजूद है तो उनकी वैक्सीनेशंस का और अपने घर की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जो पेट्स आपने पाले हुए होते हैं या जानवरों के करीब करीब भी आप रह रहे हैं तो उनके फीसेस से दूर रहना चाहिए। तो इस फीसेस में ये बैक्टीरिया ग्रो होता है, और ख़ास तौर पर प्रेगनेंट औरतों के लिए बहुत नुकसान करता है। जी, बहुत शुक्रिया फेरा। हमारे मेहमानों के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। आप देख रहे हैं बारान रहमत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत। आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी अफ्तारी नशरियात प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोको कोला, पावर्ड बाय ऑलपर टैंक एंड डाल्डा। और अब हम चलते हैं गुलजार भाई की तरफ, जहाँ डाल्डा ऑलरेडी रखा है। बहुत अच्छी खुशबू। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो कचौरियाँ थी, कड़क क्रिस्पी कचौरियाँ जो हैं तैयार हो गई। जब इस तरह की कड़क कचौरियाँ नज़र आती हैं तो दिल चाह रहा होता है खाने का, तो घर पर बना सकते हैं, बहुत ही इजीली बन जाती हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, इंशाल्लाह ये आप तैयार कर सकते हैं। साथ में पुलाव जो है तकरीबन लास्ट मूवमेंट में है, ये देख लें।
दम पर लगा दिए मैंने। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी इस वक्त मुझे आप लोगों की बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि खुशबू अच्छी आ रही है। ठीक है जी, ये दम पर है। और साथ में जब खाने अच्छे अच्छे बने हो तो ड्रिंक भी चाहिए होती है। और इफ्तार में ज़ाहिर बात है पूरे दिन की एनर्जी हमें यूज़ करते हैं, तो टैंग जो ये इनका मैसेज है कि पूरे दिन की एनर्जी दोबारा से बहाल करने के लिए टैंग बहुत सारे विटामिन से भरपूर है और ये आपको ताकत भी देता है, एनर्जी भी देता है। बच्चे और बड़े सब इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इनका एक जो मैसेज है ना, अच्छा मैंगो फ्लेवर, इसका मैंगो फ्लेवर अभी आया है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और इनका जो मैसेज है वो ये कि छोटी छोटी नेकियां करें और आपस में मोहब्बत बांटें। ठीक है जी, तो इसमें आपने ठंडा पानी या बर्फ़ के साथ इसको बना सकते हैं। और ऑलपर्स की एक बहुत ही अच्छी चीज़ वो मैं बताने जा रहा था कि इसमें फ्लेवर्ड मिल्क ऑलपर्स वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया है। मुख्तलिफ़ फ्लेवर में मौजूद है, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और मुख्तलिफ़ फ्लेवर में ये मौजूद है। इसे आप ठंडा करके बच्चों को भी दे सकते हैं, ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। इसको आप इंजॉय करें ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। जी नाज़रीन, तो ये दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। और साथ में जाते जाते लाइफ बॉय, जैसे कि मैं हैंड सोप इस्तेमाल करता हूँ, तो ये हैंड सैनिटाइज़र जो है ये लाजमी काम से पहले, काम के बाद, जहाँ पर साबुन की आपको तलब हो रही है वहाँ पर मौजूद नहीं है तो ये छोटा सा पैक है, जेब में भी आप रख सकते हैं। तो इसे आप काम के बाद या काम से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चंद कतरे इसको हाथ पे लगाएं, साफ़ करें हाथ को और काम हो गया ख़त्म और मेरी हो गई छुट्टी। तो आप सबको मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, बाय बाय। और आप सबको भी बाय बाय। शुक्रिया गुलजार साहब। आगा साहब, ये बताइए कि आजकल रमज़ान मुबारक के आखिरी अयाम हैं और सदका भी दिया जाता है, खैरात भी दी जाती है, तो क्या बुखार का भी कोई सदका है? बिल्कुल, माशाल्लाह मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सदका शिफा देने वाली दवा है। माशाअल्लाह। हम लोग सदक़े को अहमियत नहीं देते, लेकिन सदका बेहतरीन दवा है और शिफा देने वाली दवा है। अगर किसी बुखार के मरीज़ के लिए आप चाहते हैं कि सदक़े से उसका बुखार उतार लें, तो मैं एक आपको नुस्खा बता रहा हूँ, उसको नोट कीजिए। बुखार का मरीज़ लेटा हुआ है, अब उसके सहराने दाएं तरफ एक कटोरे में आटा और एक छोटी सी कटोरी में पानी और उसके दाएं बाजू को पकड़ के 41 टाइम 41 मरतबा सूरह अलहम्द शरीफ अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ बा आवाज़ बुलंद पढ़िए, ताकि अल्लाह की कलाम की जो पॉजिटिव वेव्स हैं वो उसकी बॉडी में जज्ब होना शुरू हो जाएं। जब आपने पढ़ लिया, उसके बाद वो जो कटोरी है पानी की, उस पानी की कटोरी में से बुखार के मरीज़ को हल्के हल्के छींटे दीजिए और वो जो आटा रखा था वो जाके किसी फ़कीर को दे दीजिए। थोड़ी देर के बाद बुखार छोड़ के चला जाएगा इंशाअल्लाह। कमाल का नुस्खा है, आजमाइए और आप देखेंगे इसके कमालात। क्या बात है, क्या जज़ाकल्लाह। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता मगर फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं और सब्र करते हैं। इरम साहिबा, आपसे सवाल करने से पहले अच्छी अच्छी बातें इसलिए जहन में आती हैं कि आपकी सोबत का असर हो रहा है। तो बस इसी दौरान मैं सोच रही थी कि एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है जो मुझे यकीन है कि आप उसका बहुत खूबसूरत जवाब देंगी। नेकी करने का आसान सा तरीका बता दो। एक तो जो तुमने मुस्कुराहट की बात की, तो सबसे बड़ा तो सदका मुस्कुराहट ही है। और जब तुम किसी की तरफ मुस्कुरा के देखते हो तो वैसे ही उसको इज्जत दे देते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। और मैं समझती हूँ नेकी करने का आसान तरीन तरीका ये है रीमा, कि किसी भूखे को पेट भर खाना खिलाना। और इसके लिए किसी को अमीर कबीर होने की ज़रूरत नहीं। और ये वो नेकी है कि जो मेरे रब को बहुत पसंद है। क्योंकि देखो, भूखा पेट जो है ना, वो इंसान से बहुत सारी बुराइयां करवा देता है। कभी कोई अपने बच्चों को जहर दे देता है, कभी कोई बच्चों समेत खुदकुशी कर लेता है। आप किसी क्या ये नौबत ना आने दें। तो भूखे को खाना खिलाना अफजल तरीन नेकी है और अल्लाह की नज़र में बेइंतहा पसंदीदा तरीन नेकी है। और देखो, हम लोग को अल्लाह ने कितना खुशकिस्मत बनाया है कि हम एक क्या, हम मैं समझती हूँ कि कई सौ लोगों को
खाना खिला सकते हैं, तो कम से कम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं चाहती हूँ कि जितने अल्हम्दुलिल्लाह साहिब हैसियत लोग हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें और लोगों को खाना खिलाएं, क्योंकि देखो नेकी करने वाले शख्स की मिसाल ना उस बाग जैसी है जो खुशबू को फैलाता है। वो ये नहीं देखता कि ये खुशबू इस शख्स जो मौजूद है ये मुझे पसंद है या ये मुझे नापसंद है। फूल की खुशबू तो हर एक तक पहुंचती है, तो आप भी ऐसे फूल बन जाएं कि जिसकी खुशबू हर एक तक पहुंचे, तो इंशाल्लाह आपकी जो नेकी की नीयत है ये भी लोगों को महका देगी। बेशक बेशक, ऐसी बात है, बहुत खूबसूरत बात है पर्सनालिटी और खूबसूरत बात है। और यकीन करें आप जिस अंदाज से बोलती हैं और आपकी आवाज़ में एक असर इस वजह से भी है कि ख़ुद भी आप प्रैक्टिकल हैं जो आप कह रही हैं, वरना आप जितनी बातें करती हैं आपकी बात में असर नहीं होता अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होती। ये बहुत ज़रा नवाजी आप लोग, ये हमने दोनों ने ये दिल से कहा है। बहुत बहुत ज़रा नवाजी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, उम्मे राहिल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम बुखार के टॉपिक पे ही बात कर रहे थे। अच्छा, बुखार के साथ बच्चों में टॉन्सिल्स भी कभी मसला आ जाता है, तो इसके लिए हम क्या करें? अच्छा देखो, सबसे पहली बात है कि जब हम इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, बड़ों के लिए बता रहे थे, बच्चों का जो बुखार है, जब बच्चा दांत निकाल रहा है तो उस वक्त भी बुखार चढ़ रहा होता है। अब उस वक्त बच्चे को कोई मेडिसिन नहीं दी जानी चाहिए और दे भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि वो एक पीरियड होता है, एक फेज़ होता है और उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसी तरह टॉन्सिल्स में होता है। तो दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी और ये बच्चों के लिए स्पेशली होती है, हमारे क्रोमा थेरेपी में बहुत कॉमनली चल रही होती है। जस्ट ये आपने अपने बच्चे के हाथ पे ये जितना अपने हाफ मून की तरह जो है, ये अपनी 10 की 10 जो फिंगर्स आपकी हैं इसको आपने ब्लैक कर लेना है बच्चे का। ये बड़ों का भी कर सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए इंतहाई इफेक्टिव है। इस तरह से हाफ मून लाइक इस तरह से ये आपने पूरे 10 का करके इसको थोड़ी देर पानी में रखना है। हार्डली इस कैमरे में दिखा देंगे? हाँ बिल्कुल, इस तरह से, जिस तरह से मैंने अपने सीधे तरफ ना? हाँ बिल्कुल, ये जो एरिया है आपकी टिप्स जो है अपने फिंगर की एंड इसकी, इस तरह से दोनों हाथ पे आपने करना है। लेकिन इस तरह से हाफ मून हो गया ये, लाइक पूरा सर्कल नहीं है, हाफ मून है ये। इस पर आपने दोनों हाथों में करके और जस्ट 1 और 2 मिनट्स आपने ठंडे पानी में, चाहे वो बच्चा कितना ही छोटा है, आपने 1 मिनट भी रखा है तो 1 मिनट के अंदर वो बुखार उतरना शुरू हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि वो दांत वाला बुखार चढ़ता रहता है। आती है टॉन्सिल्स की बात, उसमें वैसे ही कि आप अच्छा, ये जो आपने बताया ये सिर्फ बच्चों के लिए है? ये बड़े भी कर सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए कि बच्चों का जो ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट चीज़ें होती हैं और उनको हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर नहीं लेके जाते हैं। टॉन्सिल्स के लिए जो है कस्ते शीरी जो है बहुत तिब नबी का नुस्खा है, अब्बास भाई अच्छी तरह जानते होंगे। कस्ते शीरी जो है उसका पाउडर बना लीजिए, उसको जो है थोड़ा सा भून लीजिए एंड उसके बाद वो शहद में मिला के रख लीजिए और वो बच्चे को चटाते रहिए। उससे जो है वो टॉन्सिल्स जो है उसके ठीक होना शुरू हो जाता है। ये मेरी प्रैक्टिस में बड़ा रेगुलर जो है जिसे कहना चाहिए कि अपने प्रिस्क्रिप्शन में मैं दे रही होती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होता है। माशाअल्लाह जी। और फेरा, आपसे मैं पूछूंगी कि टाइफाइड की क्या निशानियां हैं और जब अगर किसी को ऐसा बुखार हो जाए, टाइफाइड हो जाए, तो फिर उसको कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और टाइफाइड बेसिकली कंटेमिनेटेड फूड से होता है। हम बाहर जाके खा रहे होते हैं, प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक बैक्टीरिया होता है जो कि खानों में अक्सर जो बाहर की ग़िज़ाइयत होती हैं जो कि कंटेमिनेटेड होता है। जब बाहर ठेले वेले लगे हुए होते हैं रीमा, वो हर कोई जो है गरीब जो स्पेशली हमारे मुल्क में इतनी महंगाई है तो वो कल का रखा हुआ भी कभी बेच डालते हैं और उसमें ये पैरासाइट पैदा हो जाता है और उसके बाद वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगी। जब कंटेमिनेटेड फूड आपके अंदर गया है तो वो इन्फेक्शन कॉज करता है जिसकी वजह से आपको टाइफाइड होता है। सॉरी, प्लाज्मोडियम नहीं, सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया, मैंने बैक्टीरिया का नाम गलत ले लिया था। अब उसके बाद जब आप मुश्किल नाम आपने लिया, हाँ वो हम लोग बड़ी मुश्किलों से याद कर करके लिखे हुए भी 2 बार लिया। वो प्लाज्मोडियम जो है वो बेसिकली मलेरिया का होता है। अच्छा। मलेरिया का होता है, लेकिन ये कि बेसिक जो वजह होती है ना वो ये वजह होती है कि खाना, ख़राब खाना जो हम बाहर का खा रहे होते हैं वो उसमें ये बैक्टीरिया पैदा होता है जिसकी वजह से आप टाइफाइड का शिकार होते हैं। आपका सबसे पहले इंटरनल सारे फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं और फिर बुखार चलता है और टाइफाइड एक टाइम तक चलता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाते हैं और टाइफाइड भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। बाज़ औक़ात हड्डियों तक पहुँच जाता है, बाज़ औक़ात गैस्ट्रो इन्फेक्शंस का होता है। तो उसकी ग़िज़ा के बारे में मैं अगर बोलूँ तो सूप्स, चिकन
वेस्टर्न सूप्स बेहतरीन हैं, उसके बाद ब्रोथ्स पे आ जाएं, लाइक सब्जियों के सूप्स बेहतरीन हैं, उसमें हम कोई भी हैवी डाइट नहीं दे रहे होते, रॉकनी डाइट नहीं दे रहे होते, क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती है। लेकिन ये कि बिल्कुल फ्लूइड डाइट्स पे चले जाए, सॉफ्ट बेवरेजेस पे चले जाए। जी। अच्छा आगा साहब, ये बताइएगा कि अगर किसी भी दवाई से बुखार ना उतर रहा हो तो तिब्बे नबी की रोशनी में क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक सल्तनत थी, मुमलिकत थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस्लामी मुमलिकत थी। वहाँ पर उस बादशाह की बेटी सख्त अलील हो गई और तमाम अतिबा को जमा किया गया और बुखार उतारने की कोशिश कर दी गई, लेकिन बुखार नहीं उतरा। अब उस बादशाह ने कहा कि साहब हमारी सल्तनत में ऐसा कोई तबीब लाओ जो बुखार को उतारे किसी भी तरीके से। तो एक बहुत ही फ़कीर टाइप का, मुझ जैसा हकीर टाइप का एक तबीब ढूंढ के लेके आया। उन्होंने कहा साहब ये उतारेगा बुखार, इसको ट्राई करते हैं। तो उसने कहा जी आप लोगों ने कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की? सबने कहा हमने ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई, सब उसने कहा अच्छा। उसने कहा ऐसा करो, थोड़ा सा सेब का सिरका लाओ, थोड़ा सा पानी लाओ। अब सब हंसने लगे, और बेवकूफ़ हमेशा हंसते हैं। वो हंसने लगे, सब कहने लगे हमने इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ खिला दी, ये सिरका मंगा रहा है सेब का और पानी मंगा रहा है। सब कहके मार के हंसने। उसने मंगा थोड़ा सा, आधा गिलास सिरका, आधा गिलास पानी। उसने उस बच्ची को वो जैसे ही सिरका और पानी पिलाया, थोड़ी देर के बाद बुखार उतर गया। सब हैरान हो गए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिरके में 70 किस्म के अमराज की दवा मौजूद है। अच्छा, जाते जाते एक बात कहूँगा, डेंगू फीवर आता है, उसका एक सीज़न आता है। डेंगू फीवर को कम करने के लिए, उस मच्छर को मारने के लिए, हलाक करने के लिए एक बहुत ही फिर की दवा बताता हूँ। खजूर के दरख्त की लकड़ी, खजूर के दरख्त की टहनी, उसको तोड़ लीजिए और उसको जलाइए। उसके धुएं से हशरातुल अर्ज़ का जहर उनके अपने अंदर मर जाता है। वो काटेगा भी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत अंदाज से बयान फरमाया आपने, माशाअल्लाह। क्या अच्छी अच्छी बात है, माशाल्लाह। जी मैं चाहूँगा आप इरम साहिबा से सवाल करें, क्योंकि आप बहुत चुन चुन के सवाल करती हैं, हमें सीखने को बहुत मौका मिलता है, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। अच्छा इरम साहब, मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात हो रही थी कि नेकियां करने के बहाने ढूंढते हैं। हम हमेशा ऐसे लोगों के लिए ज़्यादातर बात कर रहे हैं कि जिनके अंदर ये कमी होती है कि हमने इतनी नेकी कर ली, भाई बस हमने तो अपनी ज़कात दे दी, जबकि इस्तात होती है। लेकिन अब ऐसे लोगों का भी बताएं कि जो अपनी औकात, अपनी हैसियत से बढ़कर देते रहते मगर फिर भी नहीं थकते। खुशकिस्मत होते हैं और दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तिजारत कर रहे होते हैं। क्योंकि तुम देखो, जब अल्लाह की राह में देते हो ना, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह क्या खूबसूरत बात फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह की राह में कुछ दो तो देने वाले से कभी ये ना कहो कि मेरे हक़ में दुआ करना, क्योंकि तुमने जिसके लिए दिया है ना, अब ये सौदा उसके दरबार में छोड़ दो, तो उस शख्स से ये ना कहो कि मेरे लिए दुआ करना। तो तुम देखो कि जो लोग अल्लाह के लिए करते जाते हैं ना, वो अल्लाह के लिए करते हैं ना, इसलिए वो थकते नहीं। थकते वो लोग हैं जो दुनिया के लिए करते हैं, क्योंकि दुनिया जो है वो ये जुमला दोबारा कहिए। इस वक्त तो कोविड की वजह से हमारे साथ ऑडियंस नहीं है, वरना एक बड़ी क्लैपिंग होती है इस बार। नहीं, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं। बात हकीकतन यही है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करते हैं वो कभी नहीं थकते, और जो दुनिया के लिए करते हैं वो थकते हैं, क्योंकि दुनिया है ही थका देने वाली जगह, और आपको सहारा देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो जब आप अल्लाह की राह में होते हैं तो आपको कौन थामता है? अल्लाह ही थामता है। अल्लाह की राह में बात की मेरी बहन ने, मैं भी एक जुमला, अगर आप लोग मुझे मौका फराम करें, एक जुमला कह ही डालूं मैं। कह दें आज आप। मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रिस्क सखावत में पोशीदा है और दुनिया इसे मेहनत में तलाश करती है। वाह 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 वाह। मौला से किसी ने पूछा कि मौला सखावत किसे कहते हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया सखावत इसे कहते हैं आप मांगने वाले के दस्त फैलाने से पहले, उसके जुमले कहने से पहले, उसके मांगने से पहले उसकी हाजत पूरी कर दें, इसे सखावत कहते हैं। वाह वाह वाह। और देखो, यहीं पे मुझे भी मौला अली का एक कौल याद आ गया। आप फरमाते हैं कि जब किसी को कुछ दो तो उसके चेहरे की तरफ ना देखो, बिल्कुल कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शर्मिंदा नजरें तुम्हारे अंदर गुरूर का बीज बो दे। तो देते हुए इंकिसारी पैदा करो, अल्लाह के लिए दो, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते,
जो बनावट करते हैं, तो उनके देने से भी बिगाड़ पैदा होता है माशरे में, कि मतलब क्योंकि उसमें नेकी नहीं होती ना, हर चीज़ की जड़ नेकी है, तो उसमें नेकी नहीं होती। और वो एक बड़ा खूबसूरत उनके लिए शेर मुझे याद आता है कि इस शहर सितम में पहले तो मंजूर बहुत से कातिल थे, अब खुद ही मसीहा कातिल है, ये जिक्र बराबर होता है, माहौल पे साकित रहता है, फितरत में समंदर होता है, क्या बात। तूफान जो डुबो दे किश्ती को, किश्ती में ही अक्सर होता है। वाह, आपने वाह, ऐसी वाह, बात वाह। की है तो दरियाए बात। नील में जिस रास्ते पर हज़रत मूसा वाह, पार वाह। कर गए उस दरिया को, उसी रास्ते पर चलते हुए फ़िरौन और उसकी पूरी कौम गर्काब हो गए। तो रास्ते नहीं, राहबर बचाते हैं, तो सही राहबर का इंतखाब कीजिए, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। बल्कि अगर वक्त है तो और सवाल भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त है अभी। ये हमें फेवर मिल रही है। जी, फेवर मिली है, अब इतनी अच्छी बातें ये हो मुझे रही हैं लगता है तो कि हम- इरम साहिबा की बातों हमारी की ट्रांसमिशन में जो ब्रेक आना था वो अब थोड़ी देर बाद ब्रेक लगेगा। अभी नेकी बढ़ गई। नेकी बढ़ गई, ताकि अच्छी अच्छी बातें हों। तो जी, सवाल करेंगे आप डॉक्टर जी, साहिबा उमराइल से? साहबा, आप ये बताइएगा कि बुखार में कमज़ोरी भी बढ़ जाती है, तो ज़ाहिर है इंसान डॉक्टर के पास भी तभी जाएगा कि जब थोड़ा सा तवाना होगा। तो सबसे पहले तो ज़रूरी कमज़ोरी दूर की जाए, तो वो कैसे दूर की जाए? देखिए, अभी तो जैसे फ़ैदा ने डाइट के बारे में बताया, उसमें खिचड़ी जो है जिसको बहुत मतलब वो मरीज़ों की ग़िज़ा कही जाती है, लेकिन वो बहुत ही तवाना होती है, तवाना करती है और ग़ज़ाइयत से भरपूर होती है। जो मूंग की खिचड़ी होती है वो लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, और जैसे अभी सूप की बात हुई, यखनी की बात हुई, ये लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे यहाँ जब जूस की बात आती है तो हम कोशिश करते हैं कि जी तैयार जूस ला के पिला दें जो भी पेशेंट है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। घर का निकला हुआ जो फ्रूट जूस है, फ्रेश जूस है, वो ज़्यादा बेहतर है मरीज़ को देना। और साथ साथ अगर गर्मियां हैं तो जौ का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चाहे वो जौ का सत्तू हो, चाहे वो जौ का शेक बना लीजिए या जौ का पानी पिला दीजिए। ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा तवानाई देती हैं। और जैतून का इस्तेमाल खाने में लाजमी रखें। जी बिल्कुल ठीक है। क्या बात। तो फिर अब आप भी मुझे बता दीजिए कि टाइफाइड की निशानियाँ क्या हैं, और अगर टाइफाइड हो जाए तो इसमें किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल अच्छा, करें? टाइफाइड के सबसे पहले तो बुखार किसी भी किस्म का हो, आपका पहले टेम्परेचर 99 से बढ़ना शुरू होता है और हल्का फुल्का आपको बॉडी एक होता है, आप उस एनर्जी लेवल पे नहीं रहते। लेकिन टाइफाइड में ये होता है कि आप फूड डाइजेस्ट भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे होते, और अगर वो बढ़ जाए तो वो हेपेटाइटिस सी या जॉइंटिस की तरफ भी चला जाता है। तो शुरू में ही बहुत ज़्यादा ख्याल कर लेना चाहिए। और साथ में मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ घर में जो भी बनाए घर में बना लें। और अब बहुत सारी ख़वातीन प्रिजर्वेटिव फूड भी जो फ्रोज़न मिल रहे होते हैं उसको भी अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि घर में आपको प्योर फूड, एक हेल्दी फूड बना के सप्लाई कर सकती हैं, तो आप उनसे ले लें अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो ऑल टाइम हेल्दी फूड होगा। उसके बाद अगर मैं आती हूँ तो अपने घर में ग़िज़ा का ख्याल करने के साथ साथ मलेरिया की जहाँ पे बात हो रही थी, तो मलेरिया सफाई का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि मलेरिया जो मैंने बैक्टीरिया का नाम लिया था प्लाज्मोडियम पैरासाइट, वो बेसिकली पानी में मौजूद होता है, और वो जो मच्छर लेकर उसको उड़ता है वो उसका कैरियर बनता है। उससे मच्छर का कुछ नहीं जाना, लेकिन उस मच्छर ने अगर आकर मुझे काट लिया तो उससे मुझे मलेरिया होगा। मच्छर का कुछ नहीं जाता, यानी मगर इसका मच्छर नाम- काटता है, नाम उसका इतना सब मुश्किल- कुछ प्लाज्मोडियम, हाँ, नाम इतना प्लाज्मोडियम मुश्किल पैरासाइट है। नाम इतना मुश्किल है, और मच्छर भी मुश्किल है। जैसे भी कोरोना की वबा चल रही है ना, तो कहते हैं कि आप बच्चों को इतनी आसानी से नहीं लग रहा, लेकिन बच्चे कैरियर बन सकते हैं, आप बुजुर्गों से दूर रखें या बाहर लेके नहीं जाएं। बिल्कुल। तो इसी तरीके से मलेरिया में वो मच्छर कैरियर है जो कि एक से दूसरे को ही घर में फैला देता है। तो घर में पानी वाली सफाई का खास ख्याल बिल्कुल, जरूरी है। सफाई निस्फ़ ईमान है। टाइम की कमी है, वरना मैं भी इसको प्रोसीड नहीं, इंशाल्लाह वक्त अभी बहुत मिलता सारी रहेगा। बातें आपसे करेंगे इंशाल्लाह। आप तो ये ट्रांसमिशन एक नहीं, हमारे पास बहुत सारी बिल्कुल, ट्रांसमिशन होंगी और आप तो लेकिन अब बहुत तो सारी सिर्फ जगह पे 1 जाते या हैं। 2 दिन बाकी रह गए हैं। हाँ, लेकिन ये माशाल्लाह साल भर लोगों की रहनुमाई फरमाती हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के ज़रिए। तो इंशाल्लाह हमें जब जब मौका मिलेगा हम आपसे इस्तेफ़ादा करेंगे। तो नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक और इस्तेफ़ादे का, जिसको कहते हैं ब्रेक, और जिसके लिए ताउन किया है हमारे साथ सर्फ एक्सीलेंट कोका कोला ने, पावर्ड बाय ऑलपर्स, टैंग एंड डालडा। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए बाराने रहमत। थोड़ी देर बाद हम वापस बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तामुन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंग, ऑलपर्स एंड डालडा। आज हमारा ये बहुत ख़ास सेगमेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे बैठे हैं। मैं भी एक माँ हूँ, फरहान भी एक वालिद हैं,
हम इस वक्त इन बच्चों से मिलकर अपने बच्चों को याद कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, अगर हम हर बच्चे के लिए वैसे ही पॉजिटिव सोचें और ये सोचें कि हम अपने बच्चों की सलाह कैसे कर सकते हैं, उनको सही और गलत के बारे में कैसे समझा सकते हैं, तो उसका बहुत ही आसान सा एक तरीका है कि बच्चों के साथ सबसे पहले तो दोस्ती करें बिल्कुल। और फिर देखें कि उनको कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, किस चीज़ में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, और बिल्कुल बच्चों से बच्चों के अंदाज में बात करके ज़्यादा ज़रूरी जब आप कोई बात समझाएंगे तो उन पर असर भी होगा। आप बाली सकीना से कैसे बात करते हैं? उन्हीं की तरह, उनकी एज में ढल के, बाली सकीना की एज। तो अब आपके जो लेफ्ट साइड पे एक प्यारी से सूरत बैठी है, ज़रा उन्हीं की एज में ढलकर उनका नाम पूछें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब देते हैं बेटा, बोलो। वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं। क्या नाम है आपका? जान क्या नाम है? मोहम्मद अफ़ान। भाई मोहम्मद अफ़ान। और मैं प्यारे से बाकी बच्चों के भी नाम जी पूछूं? ज़रूर पूछे सबके नाम। अच्छा और बच्चों ये जो आप टांग हिला रहे हैं ना, ये टांग नहीं हिलाते, गुनाह होता है। टांग स्ट्रेट करके बैठते हैं, यूं टांग हिलाते हैं तो अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाते हैं। जी, मैं अपने इस प्यारे से बेटे का नाम पूछती हूँ। बेटा आपका क्या नाम है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई गिरा बात दिया? नहीं, कोई बात नहीं। आपने गिराया बच्चे नहीं नहीं, को? मैंने नहीं गिराया। वो उतर के जा रहे थे तो अचानक उनका पाँव स्लिप हो गया। ओए मामा, कोई देखो बात इधर। नहीं। कोई बात नहीं। कोई बात, वो देखो, किसने चोट ये देखो, लगाई? देखो देखो, चूंटी मर गई, चूंटी मर गई। अरे हम उसको अभी डांटेंगे। किसने मेरे बेटे को गिराया? मैं उसको अभी डांटूंगी, अभी डांटूंगी। ठीक है, बस अभी। अरे देखो स्माइल आ गई, शाबाश। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है बेटा? मुइज़। मुइज़। और आपका बेटा? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। और बेटा आपका क्या नाम है? हसन। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। इतने प्यारे प्यारे नाम हैं। अच्छा बच्चों, आपको एक आध में छोटी सी कहानी सुनाओ। No, it's not going to be long. It's a very short story and I hope you will like it. छोटी सी कहानी है। टाइनी सी स्टोरीज में हमारा एटीट्यूड बहुत काउंट करता है। तो आज की कहानी का उन्वान है हुस्न अखलाक की बरकत। हुस्न अखलाक की बरकत। ठीक है। ये कहानी एक मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की है। उन्होंने एक मकान किराए पर लिया। उस मकान के पड़ोस में एक यहूदी का मकान भी था। हज़रत मालिक बिन दिनार का घर उस यहूदी के दरवाजे के बिल्कुल करीब था। उस यहूदी ने एक परनाला बनाया हुआ था। वो हमेशा उस परनाले के रास्ते से कचरा हज़रत मालिक बिन दिनार के घर पर गिराया करता था और वो उनको तकलीफ़ देकर, उनको परेशान करके बहुत खुश होता तो ये था। तो बहुत बुरी बात होती है, तकलीफ देना। और पता है बच्चों, एक लंबे अरसे तक वो ऐसे ही उनको तंग करता रहा। आप बताएं कि कोई कचरा अगर आपके घर के सामने डाले तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। क्योंकि ये बुरी बात है। किसी को तंग करना तो बुरी बात है ना। तो आप पता है उसके बाद हज़रत मालिक बिन दिनार ने क्या किया? उन्होंने कभी भी उस यहूदी से शिकवा ही नहीं किया। उसको अटेंशन ही नहीं पे की उन्होंने, बल्कि वो उसके लिए दिल में दुआ करते थे कि रब्बुल इज़्ज़त ये इंसान अपनी इस्लाह कर सके। आखिर एक दिन उस यहूदी ने खुद ही हज़रत मालिक बिन दिनार से पूछा कि आपको मेरे परनाले से कोई तकलीफ़ तो नहीं? आपने फरमाया होती है, मगर मैंने एक झाड़ू अपने पास रख लिया और एक टोकरी भी रख ली है। जो कचरा गिरता है मैं उसको साफ़ कर देता हूँ। उस यहूदी ने बड़ी हैरत से कहा, आप इतनी तकलीफ़ क्यों करते हैं? और सबसे बड़ी बात कि मैं इतना कुछ आपके साथ करता हूँ और आपको गुस्सा नहीं आता? अच्छा ये बताओ, आप में से किसी को गुस्सा आता है? बच्चे सच्चे हैं, लेकिन मैं बताऊं बेटा, कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं। बहुत अगर गुस्सा आए तो लंबे लंबे सांस लेते हैं और अल्लाह को याद करते हैं और दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो गुस्सा
भाग जाता है। और इसी तरह हज़रत मालिक बिन दिनार ने फरमाया कि गुस्सा पीने वाले और लोगों को माफ़ करने वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। ये सुनकर वो यहूदी बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा कि यकीनन आपका दीन बहुत अच्छा है, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा और आज से मैं सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करता हूँ। फिर उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अच्छे अखलाक से लोगों का दिल जीत सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि अच्छा अखलाक क्या है? मोइस, आप बताएं अच्छा अखलाक क्या है? हाउ टू ग्रीट पीपल, आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो? with in a generous way? आप लोगों को सलाम करते हो ना? Yeah. उनसे आप बदतमीजी तो नहीं ना करते? No. नहीं करते ना? कभी तंग भी नहीं करते? No. I don't. अच्छा, मामा पापा को तंग करते हो? A little. अच्छा ये बताओ कि मामा बाबा को क्यों तंग करते हो? I don't know. अच्छा ये नहीं पता कि आप मामा बाबा को क्यों तंग करते हो, बट मामा बाबा को तंग करते हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो मामा बाबा इतना काम करते हैं, हमें हर तरह का आराम देते हैं, हमारे स्कूल की फ़ीसें देते हैं, हमारे खाने के लिए सब चीज़ें लेकर आते हैं, हमारे लिए खिलौने लेकर आते हैं, और वो रेंट भी पे करते हैं ताकि आप एक अच्छे से घर में आराम से रह सकें और अच्छी नींद सो सकें। तो फिर मुझे बताओ कैसे मामा बाबा को तंग करना चाहिए? No. नहीं ना? तो फिर आज से प्रॉमिस करो कि मामा बाबा को तंग नहीं करोगे। Okay, fine. जी फरहान, आप बताइए ये ज़रा। अफान जो है ना कुछ कह रहा है, वो क्या चाहिए अफान? मुझे चिप्स चाहिए। चिप्स इसको चाहिए? चिप्स चाहिए। अरे प्यारे से बेटे को अभी तो चिप्स रोजा चाहिए। है, तुम चिप्स नहीं खा सकते हैं, रोजे के बाद चिप्स खाएगा। ओके? जी फरहान, आप एक प्यारा सा कलाम बच्चों को सुना दीजिए। इधर आ जाओ मेरे पास। जाइए। कम हियर। चाहिए। शाबाश। हाय शूज पहनी। आजो। चलो। जी आ जाइए जी। अभी हम उठा साइड विद मी। जी। आ जाओ, इधर आ जाओ। We will recite together, okay? Allahu, 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 Allahu. Say. Allahu, 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 Allahu. चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, खोशे में तू, बाली में तू, टहनी में तू, डाली में तू, बूटे में गुल, बूटे में गुल में बूबू में तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मोइस देखिए, जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो फिर हम खामोशी से सुनते हैं ना, लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं तो फिर अल्लाह हमारी बात कैसे सुनेगा? जब हम अल्लाह से बात करते हैं, जब अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम किसी और से बात नहीं करते ना, इसी तरह जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो हम किसी और से बात नहीं करते, सिर्फ अल्लाह का नाम लेते हैं। ठीक है, अब मिलकर सब पढ़ें। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अब आवाज़ कितनी लाउड निकल सकती है? अल्लाह कितना बड़ा है ना, तो हमें आवाज़ ज़्यादा लाउड निकालनी चाहिए ताकि हमारी आवाज़ ऊपर 7th स्काई तक पहुंच जाए। यस
نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اسماء الحسنہ میں ہم اللہ کا جو اسم سیکھیں گے وہ ہے الصمد۔ وہ لوگ کہ جو کاروباری حوالے سے پریشان رہتے ہیں اور جو مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں یا جن کو یقین کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو انہیں چاہیے یا اللہ یا صمدو یا اللہ یا صمدو چینی پہ دم کر 313 مرتبہ اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ وہ یقین کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واپس لوٹائیں گے اور آپ کی جو ہے کامیابی و کامرانی انشاءاللہ آپ کو ملنا نصیب ہو جائیں گی۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا یقین کی کیفیت یہ اسماء الحسنہ سمجھ کر پڑھنے پر ہے کہ وہی قادر مطلق ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہ بے نیاز ہے اور میں اس کا بندہ ہوں جو پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ جب آپ کی یہ سوچ ہوگی تو انشاءاللہ آپ اس کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے فیوز آپ کے سینے میں منتقل فرمائے گا۔ القادر، یا قادر سر پہ ہاتھ رکھ کر 320 مرتبہ پڑھنے سے جو سر کی تکلیف ہوتی ہے یا پھر آپ کہہ لیں آدھے سر کا جو درد ہوتا ہے، یا قادر 320 مرتبہ پڑھ کے جب آپ اس پر دم کریں گے تو انشاءاللہ آدھے سر کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم جو بھی کاروبار کریں، ہم جاب کریں، ہم کچھ بھی کریں، ناکامی بڑی ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ کے غلط فیصلے ہوتے ہیں، ہم ہر چیز اس پہ ڈال دیتے ہیں، کسی نے بندش کرا دی ہوگی، جادو کرا دیا ہوگا۔ ابا جان رحمۃ اللہ فرماتے تھے بیٹا 2 باتیں بڑی ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے غلط فیصلہ، جب بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کیے گا اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں برے فیصلے کرنے لگ جاؤں۔ جو کاروبار چلتا ہوا ختم ہو جاتا ہے اس میں برے فیصلے یا پھر کبھی کبھی گردن کے اندر سری آ جاتا ہے، اور تیسری بڑی وجہ ہوتی ہے ہمارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ ایک تو استغفار کثرت سے پڑھتے رہیں اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پڑھتے رہیں، یا مقدمو یا مقدمو یا مقدمو یا اللہ یا اور سب سے بہترین وقت جو ہے اس کا تہجد کا ہے۔ تہجد کا وقت میں نوجوان اپنے بہن بھائیوں کو لڑکوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت کا وائی فائی ہوتا ہے وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ آپ کی اس وقت دل کی جو سم ہے نا اس کا کنیکٹ مضبوط ہو گیا تو آپ کا سارا کام بالکل بہت جلدی ہو جائے گا۔ پھر ہے مؤخر، یا مؤخر پڑھنے والے کی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاثیر عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی، مثال کے طور پر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یاد کر لیتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، امتحان ہال میں جاتے ہیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں، ازبر نہیں ہوتا، تو ان کے لیے بہترین نسخہ ہے یا اللہ یا مؤخر، یا اللہ یا مؤخر، یا اللہ یا مؤخر، کثرت سے ورد کرتے رہیں۔ اس کو گننا نہیں بلکہ آپ مستقل پڑھتے رہیں، امتحان ہونے سے پہلے آپ اس کی کثرت کریں۔ اور جب بھی یاد رکھیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آل پر 11 مرتبہ درود پڑھ کر، بچوں کی نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نبی اسلام پر ان کی آل پر درود 11 مرتبہ پڑھ کے، آپ جیسے آپ کوئی سبق پڑھ رہے ہیں، آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، آپ نے سبق یاد کیا اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھا اور دعا مانگی، تو اللہ نام مصطفیٰ کے صدقے میں وہ آپ کے سینے کے اندر وہ منتقل فرما دے گا، اور میرا ایمان ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے اس بات کو بھولیں گے نہیں۔ اور اللہ ہمیں نبی اسلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، جزاک سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت علماء کرام کا یہ سیگمنٹ ہے جس سے ہم علماء کرام کے سامنے سوال پیش کرتے ہیں اور علماء کرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج کا موضوع بھی ہے فطرہ اور صدقہ، کیونکہ اب عید الفطر قریب ہے تو فطرے کے حوالے سے بات کریں گے اور صدقے کے حوالے سے بھی۔ تو میں پہلا سوال کر لوں، آگے اجازت ہو؟ جی آپ بالکل۔ مولانا ظہیر عابدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور دوسری جانب مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دونوں علمی شخصیت ہیں۔ میں مولانا ظہیر عابدی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ صدقہ بے شک مشکلوں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، لیکن ہمارے دین اسلام میں شریعت کے اندر کیا ہم اپنا صدقہ کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو صدقہ ہے جسے ہم لفظ صدقہ استعمال کرتے ہیں، یہ صدقہ واجبہ نہیں ہے۔ جو صدقہ واجبہ نہیں ہے وہ ہم کسی بھی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ جو صدقہ واجبہ ہے جیسے فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ ہم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اچھا، مگر ایک سوال اسی میں سے یہی ہے کہ اسلام کیونکہ سلامتی کا دین ہے نا، وہ ہمیں سب کی مدد کرنا بھی سکھاتا ہے،
تو ہم کس پیراہے میں رہ کر اگر کوئی غیر مسلم اگر ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے تو ہم اس کی کس مد میں مدد کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے مال سے ویسے ہی نکال سکتے ہیں کہ صاحب یہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں، یہ میں اپنے تصور میں آپ کر لیں کہ صاحب میں سے مدد کر، یعنی آپ اس کو فطرے یا زکوٰۃ کی مد سے نکال کے نہیں دیں، بلکہ ویسے اپنی مدد نکال کے اگر آپ کے پاس انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ غربت کا سب سے تکلیف دہ پہلو وہ ہوتا ہے جب بعض گناہ انسان کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ گدھا گیری کو اپنا کاروبار بنا چکے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے گناہ بھی کر جاتے ہیں جس میں چوری ڈکیتی آ جاتی ہے، جس میں قتل و غارت بھی آ جاتی ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے ہمارا دین کیا فرما کہتا ہے، اور ایسے لوگ کیسے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے، دیکھیں قرآن کتاب الحی ہے، زندہ کتاب ہے۔ آپ اس قرآن سے سوال پوچھتے ہیں اور قرآن کو جواب دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ چوری ڈکیتی، دھوکہ بازی، چیٹنگ، آج جس کو ہم بہت ہی معذرت کے ساتھ فنکاری کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بھائی بڑا فنکار ہے، مال بیچنے میں تو بھائی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ہر وہ باطل طریقہ جس سے تم اپنے پیٹ میں اس کو لے کے جاؤ گے، فی بطون نارا، تم نے اپنے پیٹ میں آگ کو ڈالا ہے۔ ہر وہ طریقہ کہ جس سے مسلمان کو، ملت اسلامیہ کو یا انسانیت کو ضرر پہنچتی ہے، اسلام نے اس کاروبار کو منع کر دیا اور اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو جو چوری ہو، ڈکیتی ہو، کہ یہ گداگری ہو، جتنے انداز ہیں قرآن نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اس کے بدلے کیا فرمایا؟ الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ مگر مفتی صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فقیر اللہ کے نام پر کچھ بھی مانگے تو بغیر سوچے سمجھے اس کو دے دو۔ اب معلوم ہو کہ کچھ لوگوں کا یہ دھندا بن چکا ہے، تو ایسی جگہ پر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا کرے۔ بہت اچھا سوال۔ اب یہی قرآن کے پاس لے کے جاتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ کیا ہے کہ سب سے پہلے جب بھی تمہیں مال دینا ہو تو سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دے دو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ زکوٰۃ عند الاحناف بھی زہیر بھائی بتائیں گے اس کو، لیکن عند الاحناف یہ کہ اگر بہن بھائی ضرورت مند ہیں تو سب سے پہلے بہن بھائیوں کا حق ہے کہ ان کو دیں۔ اچھا بہن بھائی نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں گے چچا، تایا، پھپھو، یہ خاندان میں سے کوئی ضرورت مند ہے؟ اگر ان میں سے نہیں ہے، اب اس طرح آئیں گے ماموں، خالہ، ان کے خاندان میں نہیں ہے۔ اچھا اب آپ کے جو جاننے والے ہیں ان میں سے نہیں ہے، سوسائٹی میں یقیناً ہر خاندان کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اگر یہی سوچ، یہی تھیم لے کے اگر ہم آگے چلیں تو زکوٰۃ اتنی دی جائے، اتنا اس کو مالدار کر دیا جائے کہ اگلے سال چند سالوں میں وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ یہ ایک سوسائٹی میں اگر یہ سوچ ہو جائے گی تو غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اسی گفتگو کی روشنی میں علامہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کے پاس رب العزت کی بہت کرم ہوتا ہے، بہت اس کی رحمت ہوتی ہے، بہت استطاعت ہوتی ہے، اور وہ دیتے بھی ہیں، مگر ایک جگہ پر آ کر وہ رک جاتے ہیں۔ پیسے کی کمی نہیں ہے مگر دل میں کنجوسی آ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کر دی، اب کوئی مستحق ان کے دروازے پر آیا ہے تو وہ معذرت کر لیتے ہیں، جبکہ وہ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہماری دین کیسے رہنمائی فرماتا ہے؟ یہ پروردگار عالم نے کچھ چیزیں فرض کر دی انسان پہ، جیسے فطرہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے خمس ہے، یہ چیزیں فرض کر دی ہیں، یہ واجب ہیں، یہ دینی ہے۔ جب آپ ان کے حامل ہو جائیں، آپ پر واجب ہو جائے تو آپ اسے ادا کریں۔ اس کے بعد جو چیزیں ہیں، خیرات جو آپ نکالتے ہیں یا کسی کی آپ مدد کرتے ہیں، یہ واجب نہیں ہے، آپ پہ فرض نہیں ہے۔ جتنا آپ کریں گے اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اور جتنا نہیں کریں گے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کر سکتے ہیں آپ کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، آپ ثواب کریں، لیکن اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے کہ بھائی آپ تو کر سکتے تھے کیوں نہیں کیا۔ ہاں اس صورت میں جب آپ کو یہ یقین ہو کہ سامنے والا جو آیا ہے وہ بہت ہی اضطراری کیفیت میں آیا ہے، اضطراری کیفیت میں آیا ہے، تو اس کی مدد اس وقت اس کے پاس کوئی اور ذریعہ، کوئی اور وسیلہ
नहीं है तो उस वक्त आपके ऊपर ये फ़र्ज़ बन जाता है कि उसकी उस इज़्तिरारी कैफ़ियत को, मसलन ये कि हम देखते हैं हमारे माशरे में आया कोई कि साहब मैं, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरा बच्चा बीमार है, अस्पताल में दाखिल है और मैं सब बहुत परेशान हूँ और मुझे ये दवाएँ चाहिए या नहीं तो मेरा बच्चा या जो भी मेरा मरीज़ है वो मर जाएगा या मैं उसे नहीं बचा सकूँगा। तो ऐसी इज़्तिरारी कैफ़ियत में आप पर वाजिब हो जाता है कि आप उसकी मदद करें, जबकि आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इज़्तिरारी कैफ़ियत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ असल में माशरे में हम ज़रा सा नज़र दौड़ाएँ तो मुफ्त खाने वाले ज़्यादा हो गए हैं, बड़ी माजरत के साथ। सही कह रहे हैं। ये जो पेशावर फ़कीर जिसकी अभी बात हो रही थी, ये जो फ़कीर भीख मांग रहे होते हैं, सड़कों पे हाथ फैलाए खड़े होते हैं, सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अक्सर मांगने वाले भी जो मतलब जो रोड पे नहीं मांग रहे वैसे मांगते हैं, जो आके मदद मांगते हैं, मदद करते हैं, उनमें भी अक्सरियत हम ये देखते हैं कि वो एक तरह से मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा बड़ी माजरत के साथ कि वो हड हराम, उनकी मांगने की आदत हो जाती है। आप उन्हें 10 रुपये दें वो 20 मांगेंगे, आप उन्हें 20 दें वो 40 मांगेंगे। ये उनकी एक आदत बन जाती है कि सब हमें मांग के करना है। इसके लिए सरकार ख़त्म मरतबत का एक वाक़या हमें मिलता है बहुत अच्छा, और इसके लिए उर्दू में एक मुहावरा भी है कि मछली खिलाओ नहीं, मछली पकड़ना सिखाओ। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या अच्छी बात। सरकार ख़त्म मरतबत के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि सरकार मैं नादार हूँ, मुफलिस हूँ, तो मुझे कुछ मेरे लिए मदद कीजिए, कुछ मुझे कमाने को खाने के लिए कुछ। तो सरकार ने लोगों से पूछा और उसको एक रस्सी और एक कुल्हाड़ी दिला दी और कहा जाओ जंगल में और दरख्त काटो, लकड़ी काटो और लकड़ी बेचो। वो लकड़ी काटी उसने और लकड़ी बेची और वो माशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ा हो गया। ये जितने मांग रहे होते हैं ना सड़कों पे, दो हैं मांगने की भी दो किस्में, एक सड़कों में मांगने वाले, एक वैसे घर में आके या ताल्लुकात की बुनियाद पर या वैसे आपसे आप कुछ है जी बड़ी हैसियत तो आए। ये सड़कों में मांगने वाले, इनमें से कभी किसी से आप कहिए कि भाई तुम आ जाओ, मैं तुम्हें मुलाजमत दे देता हूँ, तुम्हें मैं काम दे देता हूँ, इनमें से अक्सरियत आपको गाली देती भी निकल जाएगी, बुरा भला कहती भी निकल जाएगी। जी बिल्कुल, ये काम करना नहीं चाहते, बिल्कुल, ये मेहनत नहीं करना चाहते। इनको भीख देना मना है, सख्ती से मना है इन प्रोफेशनल भिखारियों को। हाँ, जिनका आपको पता चल जाए कि ये लोग हैं। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी सारी है। एक वक्फे का वक्त हुआ है, लेकिन नूर रहमानी साहब के साथ सवाल मैं आपके सामने पेश करके जाऊँगा, जवाब इसका वक्फे की बात लेंगे कि जो आपने खैर ख्वाही के हवाले से बताया कि रिश्तेदार भी हैं, पड़ोसी भी हैं, ख़ानदान वाले भी हैं, फैमिली में जो लोग रह रहे हैं, सबसे पहला हक़ हमारी खैर ख्वाही में किन लोगों का होता है, स्टेप बाय स्टेप वो ज़रा इरशाद फरमाइएगा, लेकिन एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। रहमतों की बारिश जारी व सारी है। बराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। ये भी हमारे ट्रांसमिशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने घर में रहकर अपने हाथों की सफाई का ख्याल रख सकते हैं। और डेटॉल से अच्छा दोस्त कौन हो सकता है जो तमाम तरह के जरासीमों का ख़ात्मा कर दे। तो जब भी आप कुछ खाने लगें, बाहर से आएँ, किसी से हाथ मिलाएं, तो कोशिश करें कि अपनी आदत बना लें कि आप डेटॉल से अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करें। ना सिर्फ ख़ुद अपनी ये आदत बनाइए बल्कि आप अपने घर वालों को भी, जिनमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और आपके दोस्त अहबाब हैं, सबको इस आदत की आदत डालिए। और घर के सर्फेसेस पर भी बहुत देर तक जरासीम रहते हैं, उसके लिए डेटॉल का ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़रा सा स्प्रे सारे जरासीम का ख़ात्मा। तो डेटॉल के साथ दोस्ती जरासीम के ख़ात्मे में बहुत अहम किरदार अदा करता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, जिस तरह जिस्म पर जरासीम लग जाएं तो डेटॉल से आप साफ़ कर रहे हैं, घर में जरासीम लग जाएं तो डेटॉल से आप साफ़ कर रहे हैं, लेकिन हमारी रूह में अगर जरासीम आ जाएं तो उसको पाक किया जाता है ज़िक्र खुदा से, ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से। चारों तरफ एक नूर सा महसूस हो रहा है और इस नूर की रोशनी में अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि हमारे पास नूर रहमानी साहब जैसे मुफ्ती भी हैं और अल्लामा साहब जैसे, अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब जैसी हज़ीम शख्सियत भी मौजूद है। तो माशाअल्लाह। मैं चाहूँगी कि आपने ब्रेक पर जाने से पहले नूर साहब से एक सवाल किया था। जी हाँ नूर साहब, वो सवाल यही था कि आपने जो खैर ख्वाही के हवाले से इरशाद फरमाया था कि रिश्तेदार भी हैं,
پڑوسی بھی ہیں، گھر میں رہنے والے بہن بھائی بھی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، تایا ہیں، چچی، سب سے زیادہ حق پہلے کن لوگوں کا ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صدقہ نافلہ اور صدقہ واجبہ. صدقہ واجبہ کے اندر زکوٰۃ ہے اور فطر ہے. اور نافلہ کے اندر جو بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رضا میں جو بھی آپ عطا کرنا چاہیں. یاد رکھیں اصول ہے عند الاحناف کہ صدقہ جو ہے واجبہ زکوٰۃ اور فطر وہ اپنی نسل کو نہیں دے سکتے اور اپنی اصل کو نہیں دے سکتے. اصل یعنی والد کو، والدہ کو، نانا کو، نانی کو، دادا کو، دادی کو، جو آپ کی جدات ہیں. اسی طرح آپ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، پوتے کو، پوتی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ بھائیوں کو، کیونکہ بھائی آپ کی نسل سے نہیں ہے تو آپ بھائی کو، سب سے پہلا حق جو ہوگا وہ بھائیوں کو ہوگا، بھائیوں کا ہوگا، بہنوں کا ہوگا. اس کے بعد چچا، پھپھا، اس کے بعد خالو، یہ تمام خاندان کے لوگ ہیں. اچھا، جو صدقہ نافلہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ آپ اپنی اہلیہ کو، جس حدیث میں ہم سنتے ہیں کہ حضور نے فرمایا آپ سب سے خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین مجھے اپنے گھر والوں کے لیے، اور سب سے بہترین صدقہ اپنی بیوی کو کھلانا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ اس کو کھلائے، بلکہ کہ اللہ کی رضا کے لیے عطا کرنا. والدین کو سب سے پہلے عطا کیا جائے. یہ صدقہ فطر، یہ صدقہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جتنا عطا کرے گا اللہ سبحانہ اس کے مال میں اتنا ہی بڑھائے گا. وہ ایک دے گا، یہاں 10 نہیں ہو سکتا، 100 ہو سکتا، 1000 ہو سکتا ہے، لاکھ. تو زکوٰۃ ہوگی تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں گے، رشتہ داروں کو دیکھیں گے. یہ ایک کرائٹیریا ہوگا. تو آپ جانتے ہوں گے، جس طرح ذرا بات کر رہے تھے کہ یہاں مانگنے والے بہت زیادہ ہوں. اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے ہمارے ایک پراپر سسٹم نہیں ہے. اگر ایک پراپر سسٹم ہو اور نیشنل حوالے سے بھی ہو اور انٹرنیشنل بھی ہو، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر کلیکشن ہوتی ہے. ہماری یہ ہوتی ہے کہ پیسہ ایک جگہ آ کے رک جاتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ مال رکے نہیں، بلکہ اس کی سرکولیشن ہوتی رہے. جب سرکولیشن ہوتی رہے گی تو یہ پھیلتا رہے گا. جب یہ پھیلتا رہے گا تو غریبوں کو بھی ملتا رہے گا، یتیموں کو بھی ملتا رہے گا، مساکینوں کو ملتا ہے. اگر رک جائے گا تو سرمایہ داروں کے ہاتھ میں رک جائے گا اور اس کی بڑھتے بھی نہیں، یہ بڑھے گا نہیں. تو آپ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہترین اور کامیاب، تو آپ اپنی ذات سے عطا کیجئے. اور یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. ایک ہوتا ہے بخیل، جو بات کر رہی تھیں آپ بھائی، آپ بھی بات کر رہے تھے. بخیل یہ وہ چاہتا ہے وہ سب کھا لے، کسی کو نہ دے. ایک ہوتا ہے لئیم، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ چاہتا ہے اس کا بھی میں چھین لوں. اور ایک ہوتا ہے کریم، کچھ نہیں ہے اور جب آئے تو سب کچھ دے دو. واہ واہ واہ، کیا بات. کریم بن جائے تاکہ اللہ آپ کو کریم ہمیشہ رکھے. اسی پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے. علامہ صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی اور رہنمائی چاہوں گی کہ جو لوگ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، کیا وہ بھی صدقے کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں، جیسے کہ ابھی نور بھائی نے ہمارے ہیں تو یہ ہمارے بھتیجے، لیکن بہرحال نور بھائی ہیں، کہا کہ جو صدقہ واجبہ ہے وہ تو آپ اپنے ماں باپ یا بیوی کو آپ نہیں دیتے، کیونکہ وہ آپ کے زیر کفالت ہے، اپنی آپ کی اولاد. تو جو آپ اپنی اولاد یا اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں یا اپنی اہلیہ پہ خرچ کرتے ہیں، وہ دراصل آپ کی عطا ہے جو آپ انہیں دے رہے ہیں. وہ نہ صدقہ ہے، نہ وہ زکوٰۃ ہے، نہ وہ فطرہ ہے. وہ ایک حد تک تو وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے آپ کھانا پینا، ان کا لباس، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کریں. اس بنیادی ضروریات سے اوپر بھی اگر آپ کچھ دے رہے ہیں تو وہ صدقہ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی ان کو عطا ہے جو پروردگار نے آپ کو دیا ہے، اس میں سے آپ ان کو مزید عطا کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. ناظرین، گفتگو اتنی خوبصورت ہو رہی ہے کہ وقفہ لینے کا دل نہیں چاہتا، لیکن مجبوری بھی ہے اور وقفہ لینا ضروری بھی ہے. اب پاران رحمت کیونکہ آپ دیکھ رہے برہان رحمت میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے علماء کرام سے بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، اور اسی گفتگو کی روشنی میں میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب، فطرہ کیا ہے اور اس کو کب اور کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ فطرہ کیا ہے. یہ روزوں کا صدقہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ فطرہ ادا نہیں کرتے تو آپ کے جو روزے ہوتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہ جاتے ہیں. اچھا جی. آپ دیکھیں یہ بھی کتنا کرم ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی،
آپ سے کوئی گستاخی ہو گئی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آخر کے اندر بھی وہ معاملہ دیا. مثلا میں یہ نکالنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری اہل سنت عند الاحناف کتنا صدقہ ہے. اچھا صدقہ فطر کے اندر بھی ہے کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو 150 روپے مثال کے طور پہ عند الاحناف نے کیا, تو یہاں ہمارا لیونگ اسٹائل دیکھا جائے گا. اچھا, آپ کا لیونگ اسٹائل کیا ہے؟ آپ درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نیچے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, یا آپ کا اسٹینڈرڈ ہائی ہے؟ اگر آپ کا اسٹینڈرڈ ہائی ہے تو آپ کشمش یا کھجور کے مطابق آپ فطرہ دیں گے. صحیح, ٹھیک ہے سر. اگر آپ درمیانے ہیں تو آپ جو کے, اور اگر آپ کا لیونگ اسٹائل نیچے ہے تو آپ اس کا گندم کے آٹے کے مطابق دیں گے. یعنی منیمم اتنا ہے. تعداد کتنی ہونی ہاں میں آپ کو چاہیے؟ بتا رہا ہوں. جی. اب اسے اس سال 2021 کے اندر جو گندم کے آٹے کے مطابق جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو نیچے طبقے ہیں, مڈل کلاس, عوام الناس, مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں, ان کے لیے 150 ہوگا. 150 روپے, 150 روپے, 150. ٹھیک ہے. اچھا جو تھوڑے سے ان سے بہتر ہیں ان کے لیے جو کے مطابق 320 روپے 320 ایک فرد کا, کے لیے. ٹھیک ہے. کھجور جو تھوڑا سا اچھے لوگ ہیں, خاندانی جانی یہ اچھا کماتے ہیں, رئیس ہیں, ان کے لیے صاحب ثروت ہیں, ان کے لیے 1000 روپے. اور جو بہت اچھی اللہ نے ان کو اپر کلاس جو لیول سمجھا جاتا ہے اس کے لیے 2200 روپے. 2200 روپے. تو آپ کا دیکھا جائے گا, آپ یہ خود سمجھتے ہیں کہ میرا لیونگ اسٹائل کیا ہے اور میں کس طرح اپنی حیثیت رکھتا ہوں. آپ جتنا آپ عطا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اتنے ہی مقبول ہوں گے. بالکل ٹھیک. اور اسی کی روشنی میں علامہ صاحب سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ فطرہ دیا کس کو جو ہے, کیا گھر میں جو ملازم ہیں آپ کے ان کا حق بنتا ہے یا آپ باہر کے کسی شخص کو دیں؟ اچھا, میں سب سے پہلے تو اللہ نے خوش رکھے اور آباد رکھے, یہ لوگ نہیں بتاتے. عموماً اخبار میں, ٹی وی پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب اس سال کا فطرہ 150 روپے ہے. یہ عموماً نہیں بتاتے. میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ 150 روپے اس عوام الناس کے لیے ہے جو آٹا, عام آٹا جو کھاتی ہے, اور باقی جو ہے وہ اپنی غذا کے اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے, اگر آپ 150 روپے والے چاول کھا رہے ہیں, اگر آپ 250 روپے والے چاول کھا رہے ہیں, اگر آپ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں, اگر آپ نہیں کھاتے مرغی کا گوشت, تو پھر اس حساب سے آپ کے فطرے کو پورا کریں گے. اب بجائیے اس کو دینا کب اور کسے چاہیے. جی دیکھیے, جو آپ کے زیر کفالت ہیں, ملازمین آپ کے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ملازمین وہ ہوتے ہیں جو آپ کے یہاں رہ رہے ہیں, کھانا پینا ان کا آپ کے ذمہ ہے, لباس آپ کے ذمہ ہے, تو چونکہ وہ زیر کفالت ہیں تو آپ انہیں نہ دیں, وہ آپ کی ویسے ہی ذمہ داری ہیں آلریڈی. اور علامہ صاحب ان کا فطرہ بھی ہمیں دینا پڑے گا؟ جی, ان کا فطرہ بھی آپ ہی کو دینا پڑے گا. اچھا, وہ ملازم اگر جو وہ آپ کے گھر رہ رہے ہیں, کھاتے پیتے ہمارے یہاں, رہتے اپنے کہیں اور ہیں, یعنی کیونکہ دن بھر کام کر رہے ہیں تو کھا پی بھی ویسے رہیں. ہاں, اس میں یہ ہے کہ جو کھا پی آپ کے یہاں رہے ہیں, اگر وہ رمضان کا پورا مہینہ آپ کے ہاں یا رمضان کے آخری مہینے آپ ہی کے یہاں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, تو پھر وہ آپ ان کا فطرہ بھی ادا کریں. اور دینے کا جہاں تک مسئلہ, اس میں بہت ذرا سی باریکی, اگرچہ کہ اس میں دینے کا یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے آپ فطرہ ادا کریں. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب نماز فجر سے پہلے ہم جس کو فطرہ ادا کریں گے تو وہ عید کی خوشیوں میں کیسے شامل ہوگا؟ بہت بنیادی سوال. بالکل صحیح. ظاہر ہے کہ ایک دور تھا, وہ جب سرکار کا دور تھا 50 سال کے بعد تک, 100 سال 500 سال تک, تو اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ جناب اسی وقت وہ گئے, اسی وقت بازار کھلے میں بازار سے چیز لے لی. اب تو اگر آپ عید کے دن جائیں تو ظاہر ہے کہ اگر اپنا کپڑا لینا چاہے, لباس لینا چاہے, تو وہ کپڑا لے گا تو سلے گا نہیں, اور لباس سلا ہوا وہ بند ہوگا, سارا سب کچھ بند ہوگا. تو جناب اس کو فطرہ دینے کا فائدہ کیا؟ اس کے لیے ہمارے یہاں فقہ میں طریقہ یہ نکالا گیا کہ آپ رمضان کے 15 تاریخ کو, 20 تاریخ کو, جب بھی اس کا وہ ہو, آپ ایک ادھار رقم لے کے اسے دے دیں. صحیح. جتنا فطرہ بنتا ہے, جو بھی آپ کے گھر کا بنتا ہے, وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لیں. جب عید کی صبح آئے تو آپ اپنا فطرہ نکالیں اور کہیں اس سے یہ ادھار جو تھا یہ اسے واپس لے لیا, ٹھیک ہے, ادھار کے طور پر, تو اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. نیت کر لیں, یہ والی نیت کر لیں, اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. اس کو لباس بنانا چاہے, وہ راشن ڈلوانا چاہے, وہ جو بھی کرنا چاہے, وہ اپنا اس طرح سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. علامہ صاحب, ہم لوگ باہر رہتے ہیں تو وہاں پر فطرہ جو ہے آپ کسی مسجد میں یا کسی امام بارگاہ میں جا کر دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ میں آپ کو عرض کر دوں, فطرہ اور زکوٰۃ دونوں کا مسئلہ یہ ہے. اگر آپ کا فطرہ اور آپ کی زکوٰۃ اس فرد تک نہیں پہنچی, یعنی آپ کے علم میں نہ آیا کہ فرد تک پہنچی, تو پھر نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی, نہ آپ کا فطرہ ادا ہوا. ہمارے ہاں ادارے ہیں, بہت ہیں, لیکن کیا آپ کو 100% یقین ہے
کہ آپ کے یہ ادارے جو ہے وہ صحیح معنوں میں صحیح انداز میں فطرے کو لوگوں تک پہنچا دیں گے. جی. مثلا یہ کہ سید کا فطرہ الگ ہے، غیر سید کا فطرہ الگ ہے، ناب فطرہ، یہ سارے جو مسائل ہیں، بہتر یہ ہے کہ اگر آپ فرد واحد کو تلاش کر کے خود پہنچا دیں تو وہ آپ کے یقین میں آپ کو پہنچائے گا کہ تقویت پہنچے گی کہ ہاں سب یہ صحیح مقام پر صحیح شخص تک پہنچ گیا. کیونکہ اداروں میں اچھے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ادارے برے ہیں، ادارے اچھے بھی ہیں، ادارے برے بھی ہیں. اگر آپ کو 100% اس ادارے پہ یقین ہے کہ نہیں صاحب یہ لوگ بڑی ذمہ داری سے ہمارے فطرے کو مستحق لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور وقت پہ پہنچا دیتے ہیں. کیونکہ میں آپ سے عرض کروں، دیکھا ہے میں نے بعض ادارے نماز پڑھنے آپ جائیں تو وہاں فطرہ وصول کر رہے ہوتے ہیں جی. تو آپ نے تو نکال دیا، انہوں نے تو ابھی رکھا ہے، وہ ابھی 3 دن بعد دیں گے، 4 دن بعد دیں گے، 5 دن بعد دیں گے، 8 دن بعد دیں گے. تو حکم تو ہے کہ نماز عید سے پہلے پہنچ جائے فطرہ. بالکل ٹھیک ہے. اور جو فطرہ ہے مفتی صاحب، یہی میں چاہوں گی اسی گفتگو پر آپ اور روشنی ڈال دیجیے گا کہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. جی میں تو رہوں گا کہ اب صدقے کے حوالے سے بھی ہماری بات ہو گئی، فطرے کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. اب ہم جانیں 28واں روزہ کیونکہ آج ہمارا ہو چکا ہے، عید کے حوالے سے کوئی میسیج آپ عوام الناس تک پہنچانا چاہیں؟ کیونکہ اب جس کووڈ کا دور بھی ہے اور یقیناً 99.9% لوگ شاید ایسے ہیں جو اس سال عید پہ نئے کپڑے بھی نہ بنائیں. کچھ اس لیے نہیں کہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ اس لیے نہیں کہ دکانیں ہی بند ہیں. نہیں کچھ نہیں پتہ نا آگے حالات کل کیا ہو جائیں، اور گورنمنٹ نے جو بھی SOPs کہنی ہے وہ ہمیں فالو کرنی ہے. تو ایسے وقت میں ہمیں کیا میسیج ملتا ہے، ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ اور اسی میں میرا ایک اور سوال میں ایڈ کرنا چاہوں کہ آخری طاق رات ہے اور اس طاق رات پر لوگ اتنی توجہ نہیں دیتے، بہت زیادہ اپنی ذاتی مصروفیات میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو اس طاق رات کو بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا، اس پر بھی آپ دونوں علماء کرام روشنی ڈال دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال فرحان بھائی کا کہ دیکھیں عید تو اس کی ہوتی ہے کہ جس کے رمضان کے روزے مقبول ہوئے ہوں، جس کی تلاوت قرآن مقبول ہوئی ہو، جس کی توبہ کے بعد اس کو اطمینان ہو کہ ہاں میں رمضان کے اندر بخشا گیا ہوں، اور جس کو رمضان بطور ایونٹ گزارا ہو تو اس کی عید کیسی، اور جس کے دل کے یہ روحانیت آ گئی ہوگی نا تو اس کے چہرے پہ اللہ ایسا نور عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کوئی عام سے کپڑے بھی پہنے تو لوگوں میں نمایاں نظر آتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کپڑوں پہ توجہ نہ دیں، اللہ تعالیٰ دل کو دے. ان اللہ لا ينظر الى قلوبكم لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ تمہارے چہروں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. تمہارے دل پاک اور صاف ہو گئے تو یہ اللہ کے تجلیات کا آئینہ بن جاتے ہیں. اور مولا علیہ السلام کا قول بھی ہے نا کہ ہر مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اس سے کوئی گناہ نہ ہو. وہ رات اس کے لیے شب قدر ہے کہ جس میں اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے. اور بہت اچھی بات کی طاق رات، اس کے بعد جو چاند رات ہوتی ہے. آپ کو پتہ چاند رات کی فضیلت میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں اے بندے خدا کہ تو نے پورا مہینہ عبادت کی ہے، آ جا تو ہم سے جس طرح مزدوری لیتا ہے، آ جا تو ہم سے مزدوری لے جا. اور اس وقت ہمارا گمان کیا ہوتا ہے، چپل خرید لیں، جوتے خرید لیں، کپڑے خرید لیں. ارے بابا یہ پوری زندگی پڑی آپ خریدتے رہنا. اس وقت اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اللہ کی محبت خرید لو، اللہ کی رحمت خرید لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت خرید لو، زندگی کا سکون خرید لو، اطمینان قلب خرید لو، اللہ سے شفا لے لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ جو بدحواسی کورونا پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، اللہ سے اس پوری کائنات کے لیے شفا خرید لو. اگر خریدنی ہے تو رب کی بارگاہ میں جا کے خرید لو. بخشش کروا رہے ہیں. علامہ زہیر عابدی صاحب، آپ اسی بات پہ بہت خوبصورت بات کی. اور میں بھی یہی کہوں گا، یہ جو خاص طور سے آخری رات ہے چاند رات جو ہم بازاروں میں گزار دیتے ہیں اور جان بوجھ کے ہم 26، 25، 27 تاریخ کو دوپٹہ نہیں لیتے اور وہ میچنگ نہیں لیتے اور یہ نہیں لیتے، وہ ہم رکھتے ہیں چاند رات کے لیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو ساری دن یا سارا مہینہ آدمی مزدوری کرتا رہے اور جب تنخواہ لینے کا وقت آئے تو نکل کے کہیں اور چل رہے. یہ جو آخری رات ہے چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، اس رات اس مہینے کی تمام اجرت ملتی ہے. اور جتنا اس رات اللہ سے لو انسان لگائے گا، جتنا اس کی عبادت کرے گا، جتنا اس سے قریب ہونا چاہے گا، اس کو ان 29 یا 30 روزوں کا اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا. تو کوشش یہ کیجئے کہ پہلے خرید لیں جو آپ نے اگر خریدنا ہے. ویسے تو مولانا نے فرمایا کہ لباس نہیں دے گا، لیکن چلیے آپ کی خوشی ہے اور حکم بھی ہے کہ نماز نیا لباس پہن کے آپ نماز پڑھیں، تو آپ لباس ضرور خریدیں. لیکن لباس کی میچنگ بھی آپ 22 کو، 23 کو، 24 کو، 25 کو لیں. چاند رات کو نہ خریدیں.
चांद रात इबादत की रात। लेकिन बहुत से लोगों को तो किबला ऐसा भी होता है ना, सैलरी मिलती ही ऐसे टाइम पे है, उनकी तो मजबूरी बन जाती है ना। नॉर्मली को बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग करते ही चांद रात को जाएंगे एंड टाइम पे। ये फरहान इतना वसी टॉपिक है कि इस पर जितनी भी गुफ्तगू की जाए कम है। और हसूल रमज़ान ये हमारा कल का टॉपिक होगा, तो उस पर भी इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या फ़ज़ाइल हैं, हमने चांद रात के क्या फ़ज़ाइल हैं, ताक रातों के क्या फ़ज़ाइल हैं, और हमने पूरे रमज़ान में क्या हासिल किया। इस पर तफसीलन गुफ्तगू उलमा कराम से इंशाल्लाह हम कल पूछेंगे। हमारी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इस वक्त हुआ एक वक्फे का। हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए बाराने रहमत। बाराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। एक अच्छी बात के साथ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसकी रोशनी में नेकी और बदी साफ साफ नज़र आती है। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में रब्बे कायनात का खौफ हमेशा कायम दायम रखे। अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें समेटने के लिए जो लोग इत्तकाफ़ में बैठे हुए हैं गुज़िश्ता 8 दिन से, उनके इत्तकाफ़ के बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। नफली इत्तकाफ़ और जो एक पूरा दौरानिए का इत्तकाफ़ होता है, इसमें क्या तफरीक है, सवाब किसका कितना ज़्यादा है, अमल, नियत, इन सब चीज़ों के हवाले से मैं मुफ्ती साहब आपसे भी गुजारिश करूँगी और अल्लामा साहब आपसे भी कि आप इस पर रोशनी डालें। अच्छा फरहान भाई, ऐसे ना प्रोग्राम ज़्यादा नौजवान बच्चे देख रहे होते हैं, तो उनको समझाने के लिए आसान मिसाल देता हूँ। जिस तरह कपड़े गंदे हो जाएँ तो वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, और जब पानी भी डाला जाता है, सर्फ भी डाला जाता है, उसमें राउंड्स होते हैं। राउंड्स होने के बाद जितने राउंड्स लगते हैं उसके बाद जब कपड़ा निकलता है तो धुला जाता है। ये आँखों के जो पानी गिरेगा ना, जिन्हें आंसू कहते हैं, ये उसका पानी है। वाह वाह, सही है बात। और दुरूद और इस्तग़फ़ार उसका सरफ है। जितना आप दुरूद और इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे और अपनी आँखों से अश्क बहाएंगे तो आप कामयाब और कामरान हो जाएंगे। वाह वाह, दिल आपका रोशन हो जाएगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत कीजिए। नमाज जो क़ज़ा है आपकी, हमारे एक मसला होता है, हम क़ज़ा उम्री जो फ़र्ज़ है वो क़र्ज़ है, तो जो फ़र्ज़ और क़र्ज़ है आप उसको अदा कीजिए। तिलावत कुरान करें और जितना हो सके खैर ख्वाही करें, अच्छी नियतें करें कि इंशाल्लाह इत्तिकाफ़ के बाद जब मैं निकलूँगा तो मैं इस अपने दिल में एक अहद करता हूँ, खैरुन्नास मैं यनफ़ुन्नास, मैं अपनी ज़ात से लोगों को नफ़ा दूँगा जितना हो सकेगा। लोग हमारे पास आते हैं, हम ये सोचते हैं यार फलान भी से अगर मिलूँगा तो इनसे फ़ायदा क्या है। मैं आप चचा कहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है भतीजे, तो इनसे मैं मिलूँगा तो इससे फ़ायदा क्या हुआ। मुझे फ़ायदा नहीं देखना, मुझे देखना कि अल्लाह किस काम से राज़ी होता है और अल्लाह किस काम से नाराज़ होता है। ये सोच, ये तरबियत कर ली, मैं कामयाब हो जाऊँगा। मुफ्ती साहब, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम इत्तकाफ़ में बैठते हैं, मगर इत्तकाफ़ में बैठने वाले कुछ लोग मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह की इबादत के साथ साथ वो दुनिया के साथ भी इन टच हैं, कुछ अपने कारोबार के हवाले से, कुछ अपनी फैमिली के साथ। इस हवाले से दीन हमारा क्या कहता है? ये मैं यही बात करता, अगर आप ना भी करती तो बाकी बातें तो उन्होंने कर दी। मैंने भी देखा है अक्सर मसाजिद में जाकर जो इत्तिकाफ़ में लड़के बैठे होते हैं, लोग मोबाइल भी चल रहे होते हैं, दुनिया की बातें भी। मकसद फौत हो गया इत्तिकाफ़ का। इत्तिकाफ़ का मकसद ये है कि आप दुनियादारी से हट कर सिर्फ़ अल्लाह से लौ लगाएं, और अल्लाह से लौ लगाने के लिए मैं, जैसे इन्होंने भी एक मिसाल दी तो मेरे जहन में भी एक मिसाल आ गई है कि आप टीवी चलाते हैं तो पहले ज़माने में टीवी जो है वो आप जाके बटन से आवाज़ तेज़ करते थे और चैनल चेंज करते थे। अब आप रिमोट कंट्रोल से आवाज़ चेंज करते हैं। कोई दूसरा रिमोट कंट्रोल आइए और उससे आप कीजिएगा साहब नहीं, इसकी से तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या इसकी इससे फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही। क्या खूबसूरत बात, क्या बात, वाह। इस रिमोट की फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही, फ्रीक्वेंसी सेट कर दीजिए, टीवी से कंट्रोल हो जाएगा। तो जब आप एहतिकाफ में बैठे हैं और आप दुनिया के मसाइल और दुनिया की अफकार और बिज़नेस की और ख़ानदान की और मोबाइल के गेम्स की और वगैरह वगैरह के दुनिया में क्या हो रहा है ख़बरें की, तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी खुदा से मिलेगी कहाँ? जब आपकी फ्रीक्वेंसी खुदा से नहीं मिलेगी तो आपका पैगाम वहाँ जाएगा कैसे? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जब आपका पैगाम वहाँ से नहीं जाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, तो वहाँ से जो अता आ रही है, भाई वाह वाह, जो नेमतें आ रही हैं, अल्लाह, तो फ्रीक्वेंसी नहीं है तो अता नेमतें कहाँ से मिलेंगी? वाह वाह, क्या अगर आप ये सब करके इत्तिकाफ में बैठेंगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप इत्तिकाफ में बैठना है तो जैसे कि हमारे नूर रहमानी साहब ने कहा
کہ آپ قرآن پڑھیں، استغفار پڑھیں استغفار پڑھیں۔ اور آپ اپنی قضائے عمری ادا کریں۔ واہ، یہ 3 بہترین کام ہے، یہ 3 جو آپ یعنی کریں یہ گے۔ اخلاص جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو اخلاص کے لیے فریکوینسی بنائیں آپ اپنی خدا سے۔ اچھا مفتی نعمان صاحب کچھ کہہ رہی ہیں؟ بالکل، میں ایک سوال پوچھوں پھر جی، آپ جی، ضرور بولیے۔ کس طرح میرے ذہن سے وہ نکل نہ جی، جی، جائے کہ اعتکاف میں تو آپ بیٹھ کر عمری اپنی نمازیں قضاء نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، تو جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھے کیا وہ بھی اپنی قضاء نمازیں جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں اپنی ہر نماز کے ساتھ؟ بالکل ہونا ہی چاہیے کہ اور اسی میں سوال یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ وہ لوگ جو 3 دن کے لیے بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ پورے 10 دن نہیں بیٹھ سکتے، حصول رزق کی وجہ سے کمانا بھی، ان کو جاب بھی کرنی ہے، چھٹی نہیں مل رہی، کیا وہ 3 دن بیٹھ سکتے ہیں؟ اور 3 دن بیٹھیں گے تو کیا ان کا بھی اجر و ثواب ویسا ہی ہوگا بحالت مجبوری جو نہیں بیٹھ پا رہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے اعتکاف میں وہ بیٹھتے ہیں، وہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا، تو آپ اللہ کے مہمان بنیں۔ وہ خوش نصیب ہیں جو 10 دن بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ اب جن کو 3 دن کا بھی اپنے گھر کا مہمان بنا رہا ہے تو وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں واہ، کہ جن کو اللہ نے اپنے گھر میں اور مہمان خانے میں، اور یہ آداب مہمان نوازی کے خلاف ہے کہ جس کے گھر میں جائیں اور مہمان کی بات نہ، میزبان کی بات نہ بھائی کریں۔ واہ واہ واہ، کیا تو جب بات۔ آپ مسجد میں ہوں گے تو کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں تو میزبان کی تعریف کرتے رہیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اب جو بہن نے سوال کیا، آپ جب ظہر کی نماز پڑھیں تو ظہر کے ساتھ ظہر کی قضاء عمری ادا کر لیں۔ جب آپ عصر کی نماز پڑھیں تو عصر سے پہلے، عصر کے بعد کیوں نہیں کر سکتے؟ مغرب پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد قضاء، اور عشاء کے بعد تو بہترین ٹائم ہوتا ہے۔ آپ عشاء کے بعد اللہ سے باتیں کریں۔ جس طرح قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، اور جب آپ نماز پڑھیں گے تو ایسا لگے گا میں اللہ سے باتیں کر رہا کیا ہوں۔ بات یہ کنیکشن مضبوط ہو جائے گا تو دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل جائے گا۔ بے شک۔ اب چونکہ وقت ایسا ہے، آخری ایام ہے، دل سب کا مضطرب ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک کلام ہم سب مل کر پڑھیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ انسان کو احساس تب ہوتا ہے جب انسان کے ہاتھ سے چیز جا رہی ہوتی ہے۔ یہ رمضان، یہ برکتوں کا مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ جب ہم اپنے کسی پیارے کو رخصت کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو رخصت کرنا، لیکن پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ تو جا رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ تو پھر لوٹ کے آ۔ یہی دعا، اسی دعا کے ساتھ اس رمضان کو ہم الوداع کرنے کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور اس نیت کے ساتھ الوداع ہمیشہ کے لیے نہیں، اے اللہ تو اس رمضان کو پھر ہمیں نصیب فرما۔ بران رحمت آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ علماء کرام اپنی خوبصورت گفتگو کے ذریعے اپنے علم کا نور اس ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ سب تک پہنچا رہے ہیں، اور ہم سب بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، طاق راتوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب آخری طاق رات، اس حوالے سے فرحان آپ کیا سوال ابھی کر جی رہے بس تھے؟ یہی سوال ہم سب کے ذہنوں میں یہی تھا کہ آخری رات ہے، آخری طاق رات ہے، اب اس طاق رات کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا نا کہ رمضان جاتا ہے اور جاتی ہوئی چیز پھر کہتے ہیں اللہ سیلری دے رہا ہے، اجرت دے رہا ہے، تو دونوں ہی صاحبان سے میں اس پہ غور و فکر کرنے کی درخواست کروں گا تاکہ عوام کی رہنمائی ہو سکے۔ مفتی الرحمانی صاحب آپ اس کے بعد پھر قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس رات میں جو توبہ استغفار کرتے ہیں، اگر آپ نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہوا ہے تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے والد اور والدہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ آپ کو بعد میں معاف کرے گا۔ پہلے اگر انہوں نے معاف کر دیا اور انہوں نے کہا جا بیٹا تیری بخشش کر دیں، تو اللہ ماں اور باپ کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے بخشش فرما دے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ بہن اور بھائی سے ناراض ہیں تو بہن اور بھائی کے دل کو سینے سے لگا لیں، کیونکہ جب سینے سے سینہ ملتا ہے تو اللہ کی رحمت عروج پر آ جاتی ہیں۔ آپ کے جو جاننے والے ناراض ہیں، میاں بیوی کے اندر اگر دوریاں ہیں تو اس کو ختم کیجئے۔ آپ اب لوگوں سے اپنا رابطہ اللہ کے لیے اچھا کریں گے، اللہ آپ سے اپنا رابطہ اچھا کر لے گا۔ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ اس کے لیے میں ایک مثال دے دوں اور پہلے کہ رمضان کہ سمجھیں رمضان ہے کیا۔ ہم نے پورا رمضان گزارا، روزے بھی رکھے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، بہت سی چیزوں کو جو ہمارے لیے جائز تھیں اس کو بھی ترک کیا ہم نے، ناجائز کو تو ترک کرنا ہی ہوتا ہے۔ دو چیزیں اس کی ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ یہ رمضان جو ہے یہ اللہ کا سیل کا مہینہ ہے، یہاں ہر چیز ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی ہے۔ وہ چیز جو عام دنوں میں
10 रुपए की मिलती है, रमज़ान में 1 रुपए की मिलती है। यानी वो नमाज जो आप रोज़ाना पढ़ते हैं 11 महीने, अगर उसका 1 सवाब है तो रमज़ान में उसके 10 गुना सवाब आपको मिल रहा है। सेल लगी हुई है। तो जो इससे महरूम रह गए, वाह वाह, बहुत अच्छी मिसाल। वो इस सेल से महरूम रह गए। वाह वाह बिल्कुल वाह। सही। और सेल सिर्फ भूखे रहने की नहीं है, बल्कि तिलावत कुरान की भी है, बल्कि नमाज़ों की भी है, हुकूकुल इबाद की भी है। हर वो काम जो आप नेकी का अल्लाह की राह में करेंगे उसका आपको 10 गुना और 70 गुना तक सवाब मिलेगा। सवाब तो अपने आप को सिर्फ भूखे रहने तक महदूद ना करें, बल्कि उस रूहानियत की तरफ अपने आप को माइल करें कि जिससे आपके जिस्मानी ख्वाहिश से ज़्यादा आपकी रूहानियत आप पे गालिब आ जाए। अब ज़ाहिर है कि सारा महीना अगर आपने 29 दिन, 28 दिन, 30 दिन आपने ये मेहनत की और आप अल्लाह से रुजू करते रहे, आप कुरान पढ़ते रहे, आप नमाज़ पढ़ते रहे, आप ज़कात आपने निकाली, आपने फ़ितरा निकाला, आपने सारे वो काम किए जो अल्लाह से आपको खुद करने। अब ये आखिरी रात भी आपने ले ली जब आपको उजरत मिल रही थी, आपको जब ये तमाम 29 रोज़ों की आपकी उसकी, तो ये उजरत भी 1 गुना नहीं मिलेगी, ये 10 गुना मिलेगी, ये 70 गुना तक आपको उजरत मिलेगी। तो इस आखिरी रात को भी आप ज़ाया ना होने दें, बल्कि अल्लाह से जितनी ज़्यादा क़ुरबत हो सके। दूसरी चीज़ ये कि ये तो गुजर जाएगी, 29 रमज़ान आपकी गुजर गई जनाब, कल आपकी ईद हो गई, और ईद के बाद अगर आप ईद के बाद वहीं खड़े हैं जहाँ रमज़ान से पहले खड़े, तो ये आपकी सिर्फ एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज थी और कुछ भी नहीं। वाह वाह, हासिल कुछ भी नहीं है। माशाअल्लाह। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इस भूख ने, इस प्यास में अगर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी अल्लाह से मिलाई है तो रमज़ान के बाद आपकी ये फ्रीक्वेंसी मिली रहेगी और आप बहुत से सारे न सही बहुत से गुनाहों से, बहुत सी गलतियों से और बहुत सी ख़राबियों से बचे रहेंगे। और फ्रीक्वेंसी मिलाए बगैर अगर आप रिमोट दबाते रहे, नमाज़ पढ़ते रहे, फ्रीक्वेंसी मिलाए बगैर रोज़ा रखते रहे, भूखे रहे, नमाज़ पढ़ ली, फ्रीक्वेंसी नहीं मिली, तो आप 30 रमज़ान के बाद, 29 या 30 रमज़ान के बाद फिर वहीं खड़े होंगे, फिर वही धोखा दे रहे होंगे, फिर वही लूट रहे होंगे, फिर किसी का हक मार रहे होंगे, फिर किसी से झगड़ रहे होंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जितनी भी आपकी कोशिश, पहले आप अल्लाह से फ्रीक्वेंसी मिलाएं, उसके बाद ये सारे अमाल करें, तो आपकी सारी मदद। अलामा साहब ने कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात से फ्रीक्वेंसी मिलाएं, और अल्लाह ताला कितना रहीम है, कितना रहमान है, किस माह मुबारक के बाद तमाम मुसलमानों को वो ईद की सूरत में एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा दे रहा है। ईद एक बहुत प्यारा तोहफ़ा अल्लाह की जानिब से, और ईद का पैगाम क्या है, वो यही है कि हम खुशियाँ बांटते हैं, नए लिबास पहनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। कितने अरसे से जिन रिश्तेदारों के साथ हमारी बातचीत नहीं होती, हम उनको भी बुलाते हैं या उनकी दावत पर जाते हैं। तो एक दूसरे से मिलने जुलने का, एक दूसरे से खुशियाँ बांटने का नाम ईद है। तो मैं तमाम देखने वालों से यही कहूँगी कि रमज़ानुल मुबारक में, जैसे अलामा साहब और मुफ्ती साहब ने हमारी रहनुमाई फरमाई, कि जो कुछ हमने सीखा है अपनी इस्लाह करके हमने अपने तमाम गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करनी है। अपने आप से वादा करना है कि की गई गलतियाँ रिपीट नहीं करनी, और ईद को बहुत खुशी से, बहुत मोहब्बत से सेलिब्रेट करेंगे कि अल्लाह ताला ने इतना प्यारा तोहफ़ा दिया, और इसमें ना सिर्फ हम खुद खुशियाँ हासिल करेंगे, बल्कि हमारे दाएं बाएं जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जानने वाले हैं, अगर उनमें से किसी को कोई कमी है तो बग़ैर तशहीर किए, बग़ैर इजहार किए, बड़ी खामोशी से उनकी बड़ी मोहब्बत से मदद करें। जो नाराज़ हैं उनको मना लीजिए, रूठों को मना लें और मुस्कुराहटें बिखेरें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बारगाह में ये तौफ़ीक़ अता करे कि हम ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों में भी खुशियाँ बांटने का ज़रिया बन सकें। आखिरी सातें हैं रमज़ान की, अपने रूठे रब को मना लो। जो अब तक ये समझ रहा है कि मेरा रब मुझसे रूठ चुका है, वो कैसे मानेगा, तो ये जहन में रखो, जिस तरह माँ बहुत जल्दी मान जाती है, तो अल्लाह करोड़ों माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। बेशक। दुआए कुमैल, जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत कुमैल को तालीम फरमाई, तो उस दुआ के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये दुआ मांगने का एक बेहतरीन अंदाज़ है अल्लाह से, जिसमें एक जुमला है, या सरी रज़ा, ए सबसे ज़्यादा जल्दी राज़ी हो जाने वाले रब। तुम इस बात पर भी बेउम्मीद मत होना कि 28 दिन हमने अल्लाह की इबादत से गाफिल होकर गुजार दिए, बल्कि इस उम्मीद से ये आखिरी रात गुजारने की कोशिश करना कि शायद इस रात के अंदर ही अल्लाह हमारे
वो जो पिछले अमालों में कमी थी उसको पूरा कर दे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है इखलास। आज की रात भी है आपके पास, झुक जाओ अल्लाह की बारगाह में, सजदा करो, आंसू बहाओ और बोलो कि अल्लाह मुझसे गलती हुई, मुझसे कोताही हुई, मैं तेरी इबादत नहीं कर सका, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे अहबाब इबादत में लगे रहे और मैं इबादत ना कर सका। ये मेरा यकीन और ईमान है। सिद्क़ के दिल से तौबा करोगे तो आज की रात भी अल्लाह आपको माफ़ फरमा देगा। कोई बैद नहीं, अल्लाह गफ़ूर रहीम है, अल्लाह कादिर है। हो सकता है अल्लाह आपको और ज़्यादा अजर व सवाब दे दे सिर्फ़ इस निदामत के सदक़े में। तो अब ईद भी करीब है, मैं एक और पैगाम देना चाहूँगा। आप लोग बाहर निकलेंगे, शॉपिंग के लिए भी जाएंगे, तो SOPs का ज़रूर ख्याल रखिए। और अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि दुकानें बंद हैं तो आप उसको फॉलो कीजिए, ये आपकी सेहत के लिए ही है। लेकिन अगर दुकानें खुली हों, गवर्नमेंट इजाज़त दे दे, तो आप मास्क लगा कर जाएँ, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी चीज़ों पर हाथ ना लगाएं। एहतियात वाजिब है। और कोरोना वायरस के लिए एक पैगाम दूंगा कि इससे एहतियात करें, इसको जहन पर सवार ना करें, अपनी विल को बढ़ा कर रखें। कोरोना हर शख्स को नहीं मार रहा, सिर्फ उन लोगों को जो बेएहतियाती कर रहे हैं या जो जहन पर सवार कर लेते हैं। अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है, एहतियात ज़रूर कीजिए, लेकिन अल्लाह पर उम्मीद रखिए, अल्लाह से उम्मीद लगा करके इंशाअल्लाह अल्लाह सबको, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इंसान है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हमारा मुल्क पाकिस्तान हो या पड़ोसी मुल्क हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जहाँ जहाँ भी इंसान आबाद है, सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह सबकी खैर फरमाए और कोरोना वायरस से हम सबको महफूज फरमाए। और अगली बार जब हम ट्रांसमिशन करें ज़िंदगी बखैर, तो फिर उसी तरह से करें जैसे पहले किया करते थे, कोरोना वायरस की वबा ख़त्म हो चुकी हो। इलाही आमीन। अब चलते हैं हम उलमाए कराम का शुक्रिया जी, मुफ्ती नूर रहमान साहब का शुक्रिया, अल्लामा ज़ोहैर आब्दी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए।